Good morning, commandos. I'm Dr. Priyank Bhantia Bhartiya, a dental surgeon and laser specialist by profession, a social revolutionary by heart, and a political narrative game changer by ambition. I've been fortunate enough to have a wonderful family, a wonderful education at graduation and post graduation, and a beautiful circle of friends. I've been blessed with lots of talents, but still, 44 years of my life, I was not able to do justice to my talents. And now I know why. आज मैं जानता हूं कि मैं आज पिछले एक साल सवा साल में जो मैंने अचीव किया है वो पिछले 44 साल में मैं अचीव नहीं कर पाया और उसके पीछे एक ही व्यक्ति है भूपेंद्र सिंह राठौड़ बीएसआर सर. थैंक यू सो मच सर. I've been doing multiple things all my life, but there was a focus which was missing. So last year I did his workshop, vision workshop, and that really solved a lot of issues in my life, because when your why becomes clear, then how becomes easy. बीएसआर सर ने काफ़ी कुछ गाइडेंस दिया, फिर मैंने उनका और भी 6 मंथ का बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड किया और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई कि मुझे टीम चाहिए, क्योंकि उनका प्रिंसिपल था डेलीगेट डेलीगेट डेलीगेट, और आज वो सब लेवल्स पे डेलीगेट करने के बाद मैं आज वो काम कर सकता हूं जो कि मैं जिसके लिए बना हूं. जब मैंने कमांडो ट्रेनिंग शुरू की थी 7 दिन पहले, तो मुझे लगा कि मैं और क्या गेन कर पाऊंगा. काफी कुछ तो मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं. दूसरी चीज इसमें सामने आई, गुरु के बाद संगत, क्योंकि मुझे आज इतनी खुशी है कि आज 90 से ज्यादा लोग, जो कि कई लोग मेरे से ज्यादा ऊंचे हैं, बड़ी पोजीशन पे हैं, वो सब जल्दी उठकर एक दूसरे को अपने अपने अनुभव से मोटिवेट कर रहे हैं. और आज ये जो वीडियो सेशन है, मैंने सारा समय एक्चुअली वीडियोस देखने में लगाया और फाइनली बस 1 बजे से थोड़ा पहले ही मैं शायद ये वीडियो अपलोड कर पाऊंगा. लेकिन सचमुच अच्छी संगत बहुत 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 जरूरी है. What is the first thing that comes to your mind when you hear about commandos? For me, the first thing that comes to my mind is discipline. When I heard about commando training program, I was excited, but then I was afraid. What is this commando training? It should be tough. Can I do it? And I heard from people who had attended commando training that it had transformed their lives. It brought discipline in their lives. And I wanted discipline in my life as well. I was not consistent and I wanted to be consistent. And the other thing that came to my mind when I heard about commando training is toughness. I wanted to be a tough man. Tough, not only physically, but mentally, because mental toughness is very important. And after attending this commando training, what I've seen is 2 things that have started improving in me. One is consistency, discipline in terms of waking up early, because commando training, BSR, Bhupendra Singh Rathod, who is the powerhouse, he has so much of power and he talks so much of positive things. He brings a lot of positive energy, and you can feel that positive energy when you are in the commando training. So this commando training starts at early morning. Before 5, you have to mark your presence, and by 5:30, you should be joining the training. So it goes on from 5:30 till 7, where are different activities that are done. But that definitely has given me consistency, discipline, and the way commando training has been handled, the way it is delivered. And as I mentioned, BSR is a powerhouse. It brings a lot of toughness in your life. You see situations, you see difficulties in a different way. You see them as opportunities. You see them as challenges, which if you can work on, then it will take you to the next level in your life. So this commando training, what I've been attending, I think it's been like more than 2 months now. I have done commando training. It really is helpful. And I'm sure this commando training, whoever is doing, will transform their lives by bringing discipline in them, toughness in them, and also help them to move up to the next level. Thank you. 22 दिन की इस जर्नी में देखिए जिंदगी कैसे निकलती जाती है. आप में से कब
कोई इंसान 30 का हो गया, कोई 25 का हो गया, कोई 40 का हो गया। जब छोटे थे तो लगता था कब होंगे 40 के, छोटे थे तो लगता था कब कमाने लगेंगे पैसे, छोटे थे तो लगता था कब बड़े होंगे, कब बाइक चलाना सीखेंगे। राइट दोस्तों, छोटे से बड़े हो गए, पता नहीं चला कब जिंदगी निकलती गई। कई सारी चीजें हमें करनी थी, हम चाहते थे काश मैं ये सीख लेता। छोटे थे तब शायद किसी का स्केटिंग सीखने का मन होगा, किसी का डांस, किसी का म्यूजिक, किसी का घूमने का मन होगा, किसी का एडवेंचर ट्रिप्स पे जाने का मन होगा, किसी का कुछ और। लेकिन कब जिंदगी की भागदौड़ में खो गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, जैसे जिंदगी हमारे हाथ से फिसलती गई, वैसे वैसे कोई इंसान सीरियस हो गया, कोई इंसान बहुत ज्यादा गिव अप कर चुका। किसी ने सोच लिया जिंदगी यही है, मैं लकी नहीं हूं। किसी ने सोचा पैसा या तरक्की बहुत कम लोगों को मिलती है, सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। किसी ने सोचा कल करेंगे, किसी ने सोचा पहले कमा ले, भागदौड़ कर ले, फिर करेंगे। दोस्तों, जिंदगी फिसल गई। 22 दिन इस वर्कशॉप के भी फिसल गए। अगले 5 दिन, आज को मिला के 6 दिन, आइए भरपूर एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपने आपकी जिंदगी में पहली बार 21 दिन लगातार उत्सव मनाया है। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो मुझे एक कमेंट करके बताएं दैट मैं सही हूं। आई नो आप मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, बट वीडियो आएगा सेलिब्रेशन के बाद आएगा। आई एम अ बिलियनर, हाउ वंडरफुल, गुड गाइस, थैंक यू। सो लेट्स सेलिब्रेट। जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी में आए क्यों है जब पता ही नहीं है, तो क्यों ना सेलिब्रेट करना शुरू करें, ताकि कुछ पता हो या ना हो इसका स्ट्रेस तो हमारे पास कम से कम ना हो। जो सेलिब्रेट करता है वो ही सेलिब्रिटी होता है। एंड आई नो आप सेलिब्रिटी बनने के लिए पैदा हुए हैं, आप सेलिब्रेशन के लिए पैदा हुए हैं। आइए सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। 1 2 3, आर यू रेडी? Make your hands clap. Last 1 minute, everybody. Last 1 minute. Let's celebrate to the fullest.
Thank you so much. How's India? How's everything? दोस्तों एक बात तो है, आप सभी ने प्रूव कर दिया है कि यस, इंडिया बदलेगा, इंडिया बड़ा सोचेगा, इंडिया बदल रहा है। ये आप सभी ने प्रूव कर दिया। यस, यू हैव प्रूव्ड इट, राइट। क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि 22 दिन लगातार हर रोज मूवी देखना आसान है। 22 दिन लगातार हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर न्यूज़ देखना, मूवी देखने से थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान है। 22 दिन रोज दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाना आसान है। 22 दिन चिंता करना आसान है। 22 दिन छोटा सोचना आसान है। 22 दिन आलस करना आसान है, लेकिन 22 दिन जानबूझ के रोज शाम को 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक किसी को सुनना बहुत मुश्किल है। एंड आप सभी ने यह मुश्किल काम किया। एक बार अपना राइट हैंड उठाइए, अपने कंधे पे ले जाइए एंड से शाबाश। अपने आप को एक बार शाबाशी दे दीजिए। आपके घर के मेंबर्स अगर आपके आसपास बैठे हैं तो उनको एक हाई फाइव दे दीजिए, उनको एक हाई फाइव दे दीजिए, उनको गले से लगा लीजिए, उनको बोल दीजिए 1 2 3 यू रॉक गाइस। हाँ, इतेश्वरी कहते हैं सर टुडे आई एम वेरी सैड, व्हाट शुड आई डू? इतेश्वरी, सैड है, किस चीज के कारण सैड है? जस्ट बोलिए हाउ वंडरफुल, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ जो कि आपको शायद सैड बना रहा है। क्या हुआ मुझे नहीं पता, कितना बुरा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय जब आप मुझे सुन रहे हैं, कई लोग दम तोड़ रहे हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कई लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, कई लोगों के घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, कई लोग अभी अभी गिरे हैं, किसी को कुछ टूटा है, किसी का कुछ टूटा है, किसी को करोड़ों का नुकसान इस समय हो रहा है, किसी का बहुत कुछ बिगड़ रहा है, कोई हॉस्पिटलाइज है तो कोई जेल में है, तो किसी को आज रात को खाना नहीं मिलेगा और आपको सब कुछ मिला है, उसके बावजूद भी आप सैड है। तो आई थिंक यू नीड टू थिंक ट्वाइस, यू नीड टू थिंक ट्वाइस। एम आई राइट और रॉन्ग? सैड होना इज ए नेचुरल थिंग। ऐसा नहीं है कि सैड होना अलाउड ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सैड जब हो जाए, 1 घंटा रह ले, 1.5 घंटा रह ले, 2 घंटा रह ले, और उसके बाद अपने आप से पूछना अब इससे क्या होने वाला है यार, और ये रियलाइजेशन अपने आप को देना कि लाइफ इतनी अच्छी है फिर भी सैड क्यों। दोस्तों, दैट कैन गेट यू आउट। एक कहानी सुनाता हूं, मैंने शायद पहले भी सुनाई थी, आई डोंट नो रिमेंबर एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस मैजिक ऑफ थिंकिंग में बताई या नहीं बताई। एक लेडी है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूना से हैं, उनका नाम है मिस अनु आगा। मिस अनु आगा थर्मैक्स कंपनी की मालकिन है। दोस्तों, अगर पहले सुनी है तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, कहानी का क्रक्स एंड सारांश, और कहानी नहीं है, रियल लाइफ स्टोरी है। क्योंकि मैं थर्मैक्स कंपनी में कई बार ट्रेनिंग दे चुका हूं, तो इसीलिए ये कहानी मैंने उनके एम्प्लॉइज से सुनी है। कई लोगों ने जो थर्मैक्स में काम करते हैं उन्होंने कंफर्म की है, एंड इसीलिए बता रहा हूँ। प्लस इसी कहानी का मैंने कई सारे ऑनलाइन मीडियम्स में पढ़ा है। सो अनु आगा थर्मैक्स की ओनर, बहुत ज्यादा मेहनती लेडी, शादी होके घर में आई, काफी कुछ काम संभाला, अपने पति आरडी आगा साहब को बहुत मेहनत किया, हेल्प किया। एक दिन ऐसा होता है कि अनु आगा को समाचार मिलता है कि उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे, मिस्टर आरडी आगा इस दुनिया में नहीं रहे। अनु आगा परेशान हुई, रोई होंगी, बहुत ज्यादा दुखी हुई होंगी। लेकिन अगले दिन यानी 24 घंटे के अंदर अंदर अनु आगा कहाँ थी? ऑफिस के अंदर।
जब वो ऑफिस के अंदर थी, लोगों ने कहा, आर यू मैड, आप इतनी जल्दी ऑफिस में क्यों आ गए? मैम डोंट वरी, आप घर जाओ, आप रेस्ट करो, आप घर वालों का ध्यान रखो, आप सारे रिचुअल्स करो, हम काम संभाल लेंगे, आप मत आइए। अनु आगा ने कहा, अब तो मेरे पति के सपने पूरे करने की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अब तो मुझे आना ही होगा। दोस्तों, मिस अनु आगा अपनी कंपनी को संभाल रही थी, काम वापस से चलने लगा। आरडी आगा सर की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अपने सर पे ले ली, कंपनी बढ़ने लगी, उनकी लीडरशिप में कंपनी की ग्रोथ हो रही थी। 1 साल भी नहीं गुजरा था एंड अब उनकी सास का देहांत हो गया, घर में दूसरी डेथ। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर मिस अनु आगा वापस से कहां थी? कंपनी के अंदर। लोग सरप्राइज्ड हो गए, विल ऑफ स्टील, लोगों ने देखा, ओ माय गॉड क्या पावर है, अमन इंस्पिरेशन। सभी लोग अनु आगा मैम का साथ देने लगे एंड धीरे 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 कंपनी और ऊंचाइयों पे पहुंच ही रही थी, आगे चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। 3रा साल, आरडी आगा साहब की डेथ, अगले साल मदर इन लॉ की डेथ, और अब जो हुआ वो तो और भी ट्रेजिक था। उनके 22 साल के बेटे की एक्सीडेंट में डेथ। 22-year-old सन डाइड, 22 साल का बच्चा was no more। एंड पता है आपको, 24 घंटे के अंदर अंदर अनु आगा मैम वापस से ऑफिस में थी। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा स्टील का कलेजा लगता होगा यार, कितनी बड़ी शिद्दत लगती होगी कि यार कोई बात नहीं, अब मेरा बेटा तो जाना था, चला गया, मुझे दुख भी है उस चीज का, लेकिन ये इतने बेटे या इतने लोगों के परिवार जो मेरे कंधे पे हैं, जिनकी जिम्मेदारी, उनको कैसे छोड़ दूं? दोस्तों, दैट्स द पावर। ये समझिए, हम छोटी सी चीजों से दुखी हो जाते हैं। कितना सॉलिड माइंडसेट चाहिए चैंपियन बनने के लिए। चैंपियन बनने के लिए कितनी सॉलिड माइंडसेट चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, थॉट प्रोसेस चाहिए, एंड तब जाके आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तब जाके आप बनते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब जाके आपकी कंपनी बनती है 5,000 10,000 करोड़ की कंपनी, तब जाके आप कम से कम 2-3-5,000 लोगों को रोजगार दे पाते हो, तब जाके आप इतने लोगों के घर चला सकते हो। कमजोर आदमी क्या चलाएगा? उससे तो अपना घर नहीं चलता। कमजोर आदमी से अपना घर नहीं चलता। जिंदगी भर वो रोता रहता है, बच्चे की पढ़ाई कैसे कराऊं, घर महंगाई बहुत हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अरे कमजोरी छोड़ो यार, कब तक अपने आप को कमजोर समझते रहोगे? कोई कोई आदमी 5-5 हजार लोगों को पाल लेता है और तुम कहते हो मैं घर कैसे चलाऊं? छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह गए। सैड हूं सर, ऑलराइट, सैड होइए, लेकिन अपनी सैडनेस से खुद डील करना सीखिए। अगर अनु आगा मैम या जितने भी विराट कोहली जैसे लोग हैं, जिनके फादर की डेथ पे वो 90 रन का स्कोर खड़ा कर देता है, वो सचिन तेंदुलकर के जैसे लोग जिनके फादर की डेथ के बाद भी सेंचुरी लगा सकता है, वो फादर की डेथ हुई है, फादर की डेथ, किसी और की नहीं, अड़ोसी पड़ोसी की नहीं भैया, चाचा मामा ताऊ या दूर के रिश्तेदारों की नहीं, फादर की डेथ। एंड फादर की डेथ के बाद भी बंदा 4 घंटे क्रीज पे खड़ा रह के कॉन्सेंट्रेट कर सकता है आने वाली बॉल पे और सेंचुरी मार के पापा को बैट दिखाता है, बैट दिखाता है, बोला ये रहा तुम्हारा बेटा एंड ये रही श्रद्धांजलि। वहां बैठ के रो के श्रद्धांजलि क्या दूं आपको? मैदान में से दूंगा, और ऐसी श्रद्धांजलि दूंगा जो पूरी दुनिया पता नहीं कितने समय तक याद रखेगी। सैड तो था वो उस दिन, लेकिन सैड होने के बाद भी उसे पता था करना क्या है। सैड होने के बाद भी उसे पता था फोकस कहां जाना चाहिए। सैड होने के बाद भी उसके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे समझाना है उसने समझ लिया। कॉन्शियस माइंड तो जानता है जो आया है वो जाएगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड गेम खेलता है। सबकॉन्शियस माइंड कहता है इतने सालों की मेमोरी है, वो क्या करूं? तो सैड करता है, वो सैड तो होना ही पड़ेगा यार। जिनके साथ, जिनकी गोद में खेले, जिन्होंने इस दुनिया में लाया, अगर वही इंसान इस दुनिया से चले जाए तो सैड तो होना ही पड़ेगा। होगे, नेचुरल है, स्वाभाविक है। क्या कहते हैं, ये शब्द याद नहीं आ रहा, ये बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है सैड होना। लेकिन सैड होने के साथ साथ अपनी जिंदगी का कमांड भी तो लीजिए, अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी तो लीजिए।
अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं लिया, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। देखिए कितने लोग आज आज लोग कम हैं, रीजन क्या है? शादियां बहुत है। लोग कम है, रीजन क्या है? क्योंकि आज मुझे बाकी जगह का तो पता नहीं, राजस्थान में हर दूसरी गली में शादी है, चाहे वो 50 लोगों के साथ ही हो रही होगी। और एक और बात बता दूं, जो ये सेशन अटेंड कर रहे थे ना, उनकी शादियां नहीं है। छोटी दिवाली भी है नहीं, एक 11 भी है कोई, यू नो, आई डोंट नो। लेकिन एक बात बता दूं, जो लोग ये सेशन अटेंड कर रहे थे ना, वो इस समय ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो इस समय शायद किसी और को घोड़ी पे चढ़ता हुआ देख रहे हैं। दोस्तों, लेट मी आस्क यू दिस, क्या कोई भी विनर, क्या कोई भी लीडर किसी भी शादी में पूरा दिन लगाएगा अगर उसका काम नहीं हो तो? आप कहेंगे सर शादियां इंपॉर्टेंट होती है, आप क्यों नहीं समझते? एक बार होती है, पड़ोसी की शादी, दोस्त की शादी, एक बार होती है। अरे एक बार की उस शादी में तुम सुबह से हो शाम को 1 घंटा निकाल लो, बस यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। आज देव उठनी 11 से, देव उठे हैं आज। इंडिया में देव सो जाते हैं फिर उठ जाते हैं, होता है। देव उठनी 11 इज वेरी वेरी बिग। आज के दिन मैं पुष्कर में हूं, यहाँ बहुत बड़ा पुष्कर मेला भरता है एंड लाखों लोग आते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए यही होता है, पता है, जितने भी चैंपियंस हैं इनका इंटरव्यू देख लीजिए आप, जितने भी चैंपियंस का इंटरव्यू देख लीजिए, घर परिवार के 80% फंक्शंस इन्होंने मिस किए होंगे एंड इनको रिग्रेट होता है उस समय कि यार मैंने मिस कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मेरी प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी है। इतनी शिद्दत, इतना कॉन्फिडेंस और इतना फोकस अगर आपके पास नहीं है तो मैं सॉरी टू से आप चैंपियन नहीं बन पाओगे और आप बिलियनर भी नहीं बन पाओगे। इतना मैं कहना चाहूंगा आपको। चाहे आप इसको चैलेंज ले लें, चाहे आप इसको सच्चाई ले लें, और मैं तो चैलेंज करता हूं बन के दिखाओ। अगर इस वीक कॉन्फिडेंस और वीक कमिटमेंट के साथ आप चैंपियन बन जाओ तो बताना मुझे। मैं एक लड़की का इंटरव्यू पढ़ रहा था जो कि आईएएस ऑफिसर बनी, आईएएस में सिलेक्शन हुआ, तो उससे इंटरव्यू लिया गया कि कैसे किया आपने। उसने कहा पिछले 4 सालों में मैंने अपने पास कोई फोन नहीं रखा, मुझे ये नहीं पता दिवाली कैसी होती है, होली कैसी होती है। दिवाली पे भी मैं पढ़ रही थी, होली पे भी मैं पढ़ रही थी। मैंने कोई परिवार का फंक्शन अटेंड नहीं किया, मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, क्योंकि मेरा एकमात्र लक्ष्य था आईएएस ऑफिसर बनना, और मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया। मैंने दोस्तों के साथ कोई पार्टी नहीं की। 4 साल मैंने पूरी जान डाल दी अपने लक्ष्य के ऊपर, एंड मुझे गर्व है या मुझे खुशी है कि मेरी ये मेहनत रंग लाई। दोस्तों, इतनी शिद्दत लगती है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। और कई लोग 2 घंटे पढ़ लिए सुबह, 2 घंटे शाम को पढ़ लिए। क्या कर रहा है बेटा? आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। अच्छा, दिन में फोन भी कर रहा है, व्हाट्सएप भी कर रहा है, फेसबुक भी देख रहा है। एंड ये जो लड़की आईएएस ऑफिसर बनी, इसका इंटरव्यू जब मैंने पढ़ा तो मुझे क्लियर समझ में आ गया कि शिद्दत लगती है उस लेवल की सफलता पाने के लिए। पीवी सिंधु का और पुलेला गोपीचंद का इंटरव्यू पढ़ा, जब पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता, आई थिंक गोल्ड या सिल्वर, आई थिंक सिल्वर गोल्ड, कैन यू प्लीज टेल मी? आई एम सो सॉरी, मेरा जी के थोड़ा वीक है, सो कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था, क्योंकि मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड हूं गाइस। सो मैंने पढ़ा तो इंटरव्यू ऐसा था जहां पे पुलेला गोपीचंद एंड सिंधु बता रहे हैं कि हमारी एकेडमी में बच्चों को 4 बजे उठना होता है, उनके पास फोन नहीं रहता है, उनके पास फैमिली से भी कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं रहता है। जब टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है, वो 1 साल 2 साल या जितना भी समय होता है, उसमें मुश्किल से गिने चुने दिन मिलते हैं फैमिली वालों को वहां आके उनसे मिलने में। बोलते हैं कि जो कोच ने बोला वो ही खाना है, जो कोच ने बोला वो ही पीना है, पिज्जा बर्गर इन सभी का टेस्ट भूल जाओ एंड पूरा फोकस उसी चीज पे लगा दो। और उन्होंने बोला सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज, उसके बाद गए गेम, उसके बाद जिम, उसके बाद ये फूड, उसके बाद नाश्ते में इतना, हर चीज की क्वांटिटी फिक्स्ड, हर चीज की फोकस्ड फिक्स। थोड़े दिन पहले
दूती चंद या पता नहीं किसी एथलीट का एक ट्वीट आया था, वो उन्होंने वापस से डिलीट कर दिया कोरोना के कारण। जो तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारी करने के लिए शायद गवर्नमेंट से या किसी तरह से उतना फंड नहीं था जितना चाहिए था। लेडी ने क्या किया, उसने अपनी BMW बेच दी, बेचने को लगा दी। उसने ट्विटर पे डाला, मेरी BMW बिकाऊ है, अगर आप में से कोई खरीदना चाहे तो खरीदे, क्योंकि मेरा 1 महीने का ट्रेनिंग का एक्सपेंस है 5 लाख रुपए, सो दैट आई कैन ट्रेन माई सेल्फ। दोस्तों, ये होती है शिद्दत अपने गोल के लिए, ये होता है जुनून। मैं पूना से लेके दिल्ली तक साइकिल रैली कर रहा था। ओके, ये 2018 की बात, 2019 की बात है, लास्ट ईयर हमने मार्च के महीने में या जनवरी, आई थिंक जनवरी फरवरी, कितनी तारीख से, ओ सॉरी मार्च, 8 मार्च, विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे को हमने रैली शुरू की पूना से। एंड हमारे साथ 8 या 9 बुजुर्ग साइकिलिस्ट थे, जिनका नाम है यंग सीनियर्स, या जिनके ग्रुप का नाम है यंग सीनियर्स। उनमें सभी लोगों ने रिटायरमेंट के बाद साइकिल चलाना शुरू किया, और वो साइकिल पे इंडिया घूमते हैं अकेले। हर 2-3 महीने में वो ऐसी 1500 किलोमीटर की, 1000 किलोमीटर की किसी न किसी सिटी की ट्रिप करते हैं। तो उनमें से एक कैरेक्टर ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उनका नाम था मिस्टर संजय कट्टी। मिस्टर संजय कट्टी ने मुझे इसलिए प्रभावित किया क्योंकि मिस्टर संजय कट्टी एवरेस्टर थे। हालांकि एवरेस्ट का जो हिल टॉप होता है, उसके 10-20 मीटर नीचे हिलरी स्टेप है, वहीं तक वो जा पाए, लेकिन उन्होंने एवरेस्ट किया। अब उन्होंने अपनी एवरेस्ट जाने की कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा, भूपेंद्र, मैं बहुत पागल था एवरेस्ट जाने के लिए। तो हुआ यूं कि मैंने अपनी कंपनी में अर्जी डाली कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है, और उसके लिए मुझे 6 महीने की छुट्टी चाहिए। लोगों ने कहा, यू मैड, क्रेजी, जॉब छोड़ दो। संजय कट्टी सर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया जॉब छोड़ने के लिए। लेकिन वो एप्लीकेशन गई रतन टाटा साहब के पास। रतन टाटा साहब ने देखा, ओ माय गॉड, बंदा एवरेस्ट जाना चाहता है और अपनी जॉब का भी रिस्क लेने को तैयार है। उन्होंने उसकी 6 महीने की छुट्टी सैंक्शन कर दी। संजय कट्टी साहब ने शिद्दत जब दिखाई तो टाटा साहब को डिसीजन लेना पड़ा। कैन यू इमेजिन? आई थिंक ये हुआ कि उन्होंने ये ही ईमेल फिर रतन टाटा साहब को डाला और उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। खैर टाटा साहब जैसे लीडर एंड संजय कट्टी सर जैसे लीडर बहुत कम होते हैं। खैर, संजय कट्टी सर एवरेस्ट जाना चाह रहे थे। उस समय जब वो एवरेस्ट जाना चाह रहे थे, उनकी 4 साल की एक छोटी बिटिया थी और उनकी वाइफ भी माउंटेनियर थी। एवरेस्ट जाना मतलब अगर 10 लोग जाते हैं तो 6 या 7 या 8 ही वापस आते हैं, पूरे तो बहुत कम आते हैं, पूरे तो बहुत कम वापस आते हैं। 4 साल की छोटी बच्ची को नाना नानी के पास छोड़ के ये दोनों हस्बैंड वाइफ एवरेस्ट पे जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन पैसा कम पड़ गया। कंपनी ने थोड़ा लोन दिया 10-12 लाख रुपए का, फिर भी पैसा कम पड़ गया, और बैंक से लोन लिया, फिर भी पैसा कम पड़ गया। एंड एवरेस्ट जाने के लिए बहुत पैसा लगता है दोस्तों। अगर आज आप में से कोई भी आदमी एवरेस्ट की ट्रिप पे जाना चाहे तो कम से कम, ये संजय कट्टी सर का इंटरव्यू है मेरा, ही इज मिस्टर संजय कट्टी। सो ये तो लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तो संजय कट्टी सर ने अपना घर बेच दिया। आज अगर आपको एवरेज जाना है तो 50 लाख रुपए आपको जेब में चाहिए दोस्तों। ऑलराइट, 101%, क्योंकि उसके लिए ट्रैकिंग कंपनी काफी लेती है, उसके लिए इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते हैं, उसके लिए इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है, और फिर भी इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। एक लेवल के ऊपर 6000 मीटर के ऊपर अगर आपकी डेथ हुई तो कोई कुछ नहीं मिलने वाला आपको। खैर, संजय कट्टी सर ने अपना घर बेच दिया एंड एवरेस्ट के लिए निकल पड़े। एवरेस्ट के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों निकले और दोनों ने अपने ग्रुप के साथ चढ़ाई कर रहे थे एवरेस्ट पे, लेकिन उनके ग्रुप लीडर की डेथ हो गई। जैसे ही वो कैंप 3rd या कैंप 4th में पहुंचे, उनके ग्रुप लीडर की डेथ हो गई। पूरा ग्रुप हताश हो गया और नीचे आ गया। एंड नीचे आने के बाद सबने कहा अबॉर्ट करते हैं मिशन, लेकिन सबने कहा हमारा ग्रुप लीडर क्या चाहता था? हमारा ग्रुप लीडर चाहता था कि हम एवरेस्ट फतेह करें। एंड फिर से वापस सभी लोग निकले एंड फिर से दोस्तों एवरेस्ट की चढ़ाई की। मौसम खराब होने के कारण लास्ट का 50 मीटर्स नहीं हो पाया, लेकिन दिस इज द जुनून विच यू नीड। दोस्तों, ये है पावर, और हम अपने लक्ष्य के लिए क्या इतना जान डालने को तैयार है? ऑलराइट, क्या इतना जान डालने को तैयार है? ओके, अभी थोड़ी देर पहले जब लक्ष्य में जान डालते हो ना तो दुनिया देखती है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी विशेष पांड्या जी से बात हो रही थी, जो कि कौन सा कॉलेज है सर आपका? GGTU यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में प्रिंसिपल है, सॉरी लेक्चरर है।
और उनसे बात हो रही थी कि सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये काम तो पूरे राजस्थान के क्या इंडिया के हर एक शख्स तक पहुंचना चाहिए, एंड हम लोग कोशिश करेंगे सर, जैसे GGTU ने आपका साथ दिया वैसे ही और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और लोग आपके साथ जुड़ सके। दोस्तों जब इतना कह दिया ना किसी ने, बस वही लगता है कि यार मजा आ गया। रोज आप में से कईयों के फीडबैक आ रहे हैं कि सर मैं रोज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रहा हूं और मजा आ रहा है। दोस्तों आई थिंक मेरे टीचर्स के अंदर पागलपन था, उन्होंने थोड़ा मुझे दिया और अब मैं आपको दे रहा हूं, और आपको ये पागलपन आगे ट्रांसफर करना है, अपने तक रोकना नहीं है। ये वर्कशॉप तो मैंने अपने तरफ से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की है। अगर आप में से कोई भी इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहे तो फ्री है, ताकि फ्री है मतलब आप कंट्रीब्यूट करने के लिए फ्री है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आप इसके सारे रिकॉर्डिंग्स लेना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लेना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी गुरु दक्षिणा चाहिए, एंड मेरी गुरु दक्षिणा पैसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक गुरु दक्षिणा आपसे इस समय मांगना चाहता हूं। आप में से कितने लोग गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं? ओके, एंड डोंट वरी, ये पैसा नहीं है, डोंट वरी, ये आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे फायदे का है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू गिव मी गुरु दक्षिणा? आप में से कितने लोग मुझे गुरु दक्षिणा देंगे? मुकेश ठाकुर कहते हैं सर मिस करेंगे आपको आफ्टर दिस वर्कशॉप। इस टाइम पे क्या करेंगे? चिंता मत कर दोस्त, बहुत कुछ करेंगे हम लोग, है ना। एक ही तो महीना मिस करना है, जनवरी में फिर से लाएंगे यही वर्कशॉप और ज्यादा अच्छे से। ऑलराइट, कितने लोग गुरु दक्षिणा देने को तैयार है? सफलता पाने के लिए धैर्य और साहस के साथ मोर्चा संभालना ही होगा। आत्मविश्वास सबसे बड़ी कुंजी है। आई एम ग्रेट। ओके, यस, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। फैंटास्टिक, ऑलराइट। सो आप लोगों को मुझे गुरु दक्षिणा क्या देनी है वो समझ लीजिए। 2007 में मैंने एक शिक्षक से ट्रेनिंग ली जिनका नाम था सर मनीष गुप्ता। 2008 में मैंने और ट्रेनर से ट्रेनिंग ली, नित्य शांति जी। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली हैप्पी थॉट से, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली सिद्ध समाधि योगा से, SSY से, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली आर्ट ऑफ लिविंग से, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली सदगुरु से, इनर इंजीनियरिंग का कोर्स किया। उसके बाद मैंने कई सारे नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस किए, NLP सीखा, मास्टर प्रैक्टिशनर का उसका कोर्स किया, अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का सर्टिफिकेशन किया, एंथनी रॉबिन से ट्रेनिंग ली, काफ़ी सारे फॉरेन ट्रेनर्स के एंड इंडियन ट्रेनर्स के ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे, काफ़ी सारी बुक्स से ट्रेनिंग ली, काफ़ी सारे ऑडियोज वीडियोज से आइडियाज़ लिया। मतलब कहूँ तो, सच कहूँ तो 200-300 अलग अलग गुरुओं से मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी होगी। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने सीखी तो मेरे टीचर्स ने, कईयों ने कितना पैसा लिया, कईयों ने कुछ लिया, लेकिन वो पैसा तो जस्ट एक ट्रांजैक्शन है। असली गुरु दक्षिणा क्या होती है मैं बताता हूं। जब मैं इन सभी टीचर्स के पास गया तो मैं कुछ नहीं था। ऑलराइट, तो जब मैं पहली बार नित्य शांति जी के पास गया, आई थिंक आई वॉज नोबडी, आई वॉज अर्निंग जस्ट 20-30,000 रुपीज। आई वॉज इक्वली कंफ्यूज। आप में से कई लोग जैसे अभी कंफ्यूज होंगे, वैसे ही मैं भी कंफ्यूज था। मुझे भी लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर तो ऐसे भी अंधकार है, यू नेवर नो कल क्या हो। तो दोस्तों मैंने अपने आप से एक वादा किया, मैंने कहा मेरा गुरु दक्षिणा एक ही होगा मेरे टीचर्स को, कि जिन्होंने इनसे कोचिंग नहीं ली और जिन्होंने इनसे कोचिंग ली है, ओके, या मुझ में जमीन आसमान का अंतर होगा। दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे टीचर्स का नाम मैं जहां जाऊंगा वहां फैलाऊंगा। ओके, शुरू में कई लोगों ने मुझे राय दी, अरे वो उन टीचर्स का नाम क्यों शेयर कर रहा है तू, लोग फिर उनको फॉलो करने लग जाएंगे, तुझे फॉलो करना छोड़ देंगे। ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थोड़े टाइम के लिए आई थी, ओके, 1-1.5 साल के, क्योंकि कुछ गलत कोच भी मिले थे रास्ते में। लेकिन जब से मुझे लगा कि यार जिसने मुझे बनाया, अगर मैं उसी का नाम दुनिया तक नहीं पहुंचा सकूं तो दैट विल बी रॉन्ग। तो मैंने डिसाइड किया कि जिन्होंने मेरे टीचर्स से ट्रेनिंग नहीं ली और मैंने उन टीचर से ट्रेनिंग ली है, मेरे अंदर और बाकियों के अंदर जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली और जिन्होंने नहीं ली, उनके अंदर जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। जब आप कल से मार्केट में निकले तो दुनिया कहनी चाहिए किस चक्की का आटा खाते हो। दुनिया आपसे पूछनी चाहिए, अरे तू 10-20 दिन पहले तो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, अब तेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया? अरे तू पहले तो इतना मुरझाया हुआ रहता था, अब तू इतना हैप्पी क्यों रहता है? मैं दोस्तों ट्रेनिंग लेने से पहले मुरझाया हुआ था, कॉन्फिडेंस नहीं था। अब दुनिया पूछती है आपने कहां से सीखा? और फिर मैं गर्व से बताता हूं, इनसे सीखा, इनसे सीखा, इनसे सीखा, इनसे सीखा, इनसे सीखा। दोस्तों मेरी गुरु दक्षिणा तो ये होगी, जब आप
आप चाहे मेरा नाम ले या ना ले, लेकिन मुझसे सीखे हुए इंसान में और मुझसे नहीं सीखे हुए इंसान में जब जमीन आसमान का अंतर होगा, जब दुनिया कहेगी यार आप कमाल के हो, आपके लिए जब आप टीवी पे आएंगे, जब आप रेडियो पे आएंगे, जब आप अपना हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, जब आप अपने अरबों रुपया बनाएंगे, जब आप लाखों लोगों को रोजगार देंगे, जब आपकी बुक पब्लिश होगी, जब आप खुद का घर बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे, मिनिस्टर बनेंगे, पॉलिटिक्स के झंडे गाड़ेंगे, उस दिन मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिलेगी। चाहे आप मेरा नाम ले ना ले, वो अपने आप ऊर्जा के थ्रू मेरे तक पहुंच जाएगी। आप में से कितने लोग ये गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं दोस्तों? आई वॉन्ट टू नो दैट, आई वॉन्ट टू नो दैट। Sure, sir. I promise to you honestly. Very nice, dear. I love it. I'm more powerful. Yes, yes, yes. पूनम कहती है yes. हितिक्षा कहती है yes. DRS Life कहती है yes. दीपू ठाकुर कहते हैं yes. आयुष मथाइस कहते हैं yes. Okay. रवि कुमार कहते हैं yes. Okay. MD फरियाज कहते हैं yes. आमी लवर yes. Okay. सुरेन, राना, पूनम, बिल्लू, विजय, रुस्तम, okay. उमेश्वर, मारुति, राहुल, पूनम कौर, त्रिपति, मुंडाड़ा, डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, मैं तैयार हूं। ओके, वंडरफुल शालिनी जी, विराज, ओके, जितेंद्र, अरविंद डांगी, थैंक यू सो मच दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। ओके, इतना अगर आपने कर दिया तो ये समझ लीजिए बड़ा भारत सोचेगा नहीं, उसके बाद तो दुनिया भारत जैसा सोचेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरा टारगेट ये नहीं है कि भारत बड़ा सोचे, मेरा टारगेट है कि दुनिया भारत जैसा सोचे। मेरा टारगेट है कि दुनिया भारत को फॉलो करे। मेरा टारगेट है कि भारतीय लोगों को कहीं जाना ना पड़े, दुनिया सिर्फ भारतीयों के पास आए। मेरा टारगेट है दोस्तों, हम और आप इतने पावरफुल, इतने पोलाइट, इतने हम्बल एंड एट द सेम टाइम इतने पावरफुल बने कि कोई हमारी तरफ आंख भी ना उठा पाए, और कहीं चाहे आए तो उसको ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिले कि वो कहीं और दुनिया में उसे स्वर्ग महसूस ना हो। वो यहाँ जब आए तो उसको स्वर्ग क्या, स्वर्ग से भी बेहतर अनुभूति रहे। दुनिया अगर कहे कि अभी तो दुनिया कहती है कश्मीर धरती का स्वर्ग है, दुनिया कहनी चाहिए भारत पूरे ब्रह्मांड का स्वर्ग है। राइट? ऐसा अगर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन वो तभी संभव है जब आप सभी ये गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो। मुझे क्रेडिट देना या मत देना उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी तो कितने सालों की है, रोज कोई ना कोई क्रेडिट दे रहा है। एक दो का पता नहीं पड़ा कि क्रेडिट दिया या नहीं दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यस, मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो ना, अब इतना बड़ा बनना जरूरी है, वही रियल गुरु दक्षिणा होगी दोस्तों। ओके, एंड बिल्कुल इनसिक्योरिटी मत लाइएगा। मैंने कई सारे ट्रेनर्स को ट्रेन किया है, यू नो, एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक ट्रेनर मेरे साथ था, उनको मैंने ट्रेनिंग असाइनमेंट दिया। ओके, ये ट्रेनर काफी कुछ सीखा मुझसे। ओके, एंड ये मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं था, ये फ्रीलांस ट्रेनर था। कभी कभी मेरे साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं कभी कभी उसको एक दो असाइनमेंट दे देता था। वो मेरे काफी सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, बैठता था, आता था। एक बार मैंने उसको 6 दिन का ट्रेनिंग असाइनमेंट दिया एक कंपनी के अंदर, एंड he was a good trainer, he is better than me and he started training career मुझसे पहले उनका ट्रेनिंग करियर स्टार्ट हुआ। मुझसे एज में तो शायद छोटे हैं, लेकिन मुझसे पहले उन्होंने ट्रेनिंग करियर शुरू किया। मैंने उनको एक 6 दिन का ट्रेनिंग असाइनमेंट दिया, क्योंकि मेरी कंपनी अच्छी चलती थी एंड वो एक लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये ट्रेनर मुझसे ऊपर के लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहा, जबकि उसका ट्रेनिंग डिलीवरी उतना ही ऊर्जावान है जितना मेरा है, उसका नॉलेज शायद मुझसे ज्यादा अच्छा है, वो मुझसे ज्यादा पर्टिकुलर है, वो मुझसे ज्यादा तैयारी करता है, फिर वो ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा और मुझे क्यों अच्छी सफलता मिल रही है। खैर, एनीवेज, ठीक है, मैंने ट्रेनिंग असाइनमेंट दिया, 6 दिन का था, और मेरी टीम से एक लड़के को मैंने कोऑर्डिनेट करने के लिए लगाया। वो लड़का क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कर रहा था। जिस दिन ट्रेनिंग था, मैं दिल्ली में था, कोई दूसरा ट्रेनिंग कर रहा था। ये दोनों ट्रेनिंग के लिए पहुंचे, दिन भर इसने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग का फीडबैक बहुत अच्छा आया, क्लाइंट बहुत खुश, सभी लोग बहुत खुश। मुझे फोन आया शाम को मेरी टीम से, सर ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा क्या क्या करवाया, टीम ने मुझे अपडेट किया, थैंक यू। ओके, अब अगला प्रोग्राम 2 दिन बाद था। 2 दिन बाद इन ट्रेनर महोदय का मेरे पास फोन आता है, नाम नहीं बताऊंगा। मेरे पास फोन आता है कि सर आपसे बात करनी है। मैंने कहा यस बोलिए। सर आज दूसरा दिन का ट्रेनिंग है और पहला दिन बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा वाओ, हाउ वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, चलिए आप दूसरा दिन का ट्रेनिंग करने जाइए। सर एक छोटी सी बात करनी थी। मैंने कहा हाँ। बोला सर आज है ना मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको ट्रेनिंग के लिए ले जाऊं क्या?
मैंने कहा या 100%, लेकिन है ना क्लाइंट ने सिर्फ 2 लोगों का अलाउ किया है, क्योंकि होटल में खाना पीना सभी का अरेंजमेंट होता है। तो मैं नहीं चाहता कि क्लाइंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आए, एक एक्स्ट्रा आदमी का एक्सपेंस लगे जो कि ज़रूरी नहीं है। तो मैं क्लाइंट से पहले तो परमिशन लूँगा, वैसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये परमिशन लेना, बट फिर भी गिव मी सम टाइम। उसने कहा सर लेकिन प्लीज़ मैं उसे ले जाना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ भी करके। आई सेड यार ऐसा क्या है, मतलब आई कैन नॉट डायरेक्टली गिव यू द परमिशन विदाउट आस्किंग माय क्लाइंट। मेरे क्लाइंट से बात किए बिना मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद वो लड़का कहता है तो सर वो आपका जो बंदा जाता है उसको मना कर दीजिए ना, मैं इसको ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे बंदे को सारा कोऑर्डिनेशन करना है वहाँ, आपका बंदा जानता नहीं है, इट विल नॉट हैपन, और ये मेरा असाइनमेंट है तो मेरा बंदा जाएगा। देन थोड़ी सी देर बाद सर मैं आपके बंदे को नहीं ले जाऊंगा डायरेक्ट। मैंने कहा क्यों? सर वो दिन भर बैठ के मेरा कंटेंट सुनता है, मेरा कंटेंट चोरी हो गया तो। ओ माई गॉड, नाउ आई रियलाइज्ड कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है आई एम नॉट इनफ, और जो मैं हूं वो भी किसी ने ले लिया, तो मेरा क्या होगा रे कालिया। आई एम नॉट इनफ। मैंने उसे बोला, मैंने कहा आप कहाँ से लाए कंटेंट? बोला ट्रेनिंग अटेंड करके। मैंने खुद सोचा सर। मैंने कहा कहाँ से सोचना शुरू किया, किसने बताया ये सोचना? बोले सर आपके साथ सेशन अटेंड किए, दूसरे ट्रेनर्स के अटेंड किए, उसके अटेंड किए, उसके अटेंड किए। मैंने कहा और किताबों से लाया। मैंने कहा तो तेरा कंटेंट किधर हुआ? बोलता नहीं नहीं सर, मतलब मेरा ये नहीं है, आप तो बुरा मान गए। मैंने कहा लिसन दोस्त, तू 50 मेरे प्रोग्राम में आके बैठा और मैंने तेरे को फ्री में अलाउ किया। डिड आई एवर से कि मेरा कंटेंट चुरा रहा है? और मेरा कंटेंट क्या है? जो भी मैं आपको मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में दे रहा हूँ, मैंने नित्य शांति सर से, एंथनी रॉबिन्स सर से, या जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं उनसे लिया है। मेरा खुद का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरा खुद का। मुझे तो कुछ नहीं आता था, गुड़ गोबर था मैं तो। ओके, कुछ नहीं आता था, लेकिन ये सारा कंटेंट तो कॉपी पेस्टेड है। और मैं इसीलिए मैं तो आप सबको भी कह रहा हूं, आपको कॉपी राइट है। कॉपी राइट का मतलब है आपको राइट है मेरा कंटेंट कॉपी करने का, लेकिन मेरा वीडियो एज इट इज प्ले करने का राइट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैंने देखा है कई जगह पे बीएसआर का ये वाला कोर्स जो मैं 4,000 में देता हूँ या 6,000 में देता हूँ, वो 300 रुपए में। ये गलती मत कर दीजिएगा, बहुत बड़े लपेटे में आ जाओगे लीगल के, क्योंकि यू आर लीगली स्टीलिंग। लेकिन हाँ, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीख लीजिए, आप उसको सीख के दूसरों को सिखाइए, ये कॉपीराइट है आपको। ओके, यू हैव राइट। आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है मेरी टीम से कि आपने ट्विन हार्ट मेडिटेशन सिखाया, हम दूसरों को सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते, फॉरगिवनेस मेडिटेशन दूसरों को सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते, हाउ वंडरफुल आपका किसी को सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते। आप बिना आंख बंद, मतलब बिना मुझसे पूछे, मेरी टीम से पूछे सिखाइए, क्योंकि यू हैव द कॉपी राइट। कॉपी राइट मतलब आपको राइट है कॉपी करने का, वो वाला कॉपी राइट नहीं कि हाँ, वो वाला कॉपी राइट है मेरा वीडियो मुझसे बिना पूछे प्ले करने पे। ओके, या यूट्यूब पे जो भी है वो आप कहीं पे भी प्ले कीजिए, आई डोंट माइंड, लेकिन हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो क्या मैं बात कर रहा था कि एक बंदा जो मुझसे ही सीखा, मेरे से ही 50 ट्रेनिंग बैठ के फ्री में लेके नोट्स बना बना के, वो बोलता है सर आपके बंदे को ले जाऊंगा, मेरा कंटेंट कॉपी हो जाएगा सर, मेरा यूनिक कंटेंट है। आई सेड बॉस गेट लॉस्ट, दिस इज योर लास्ट असाइनमेंट इन माय कंपनी। ये 6 दिन तो क्लाइंट को मैंने कमिट कर दिया है कि तू ही आएगा, ये 6 दिन अभी तुझे जो करना है वो कर, आगे से मेरे से बात नहीं करना। दोस्तों दिस इज हाउ स्मॉल सम पीपल थिंक। क्यों बता रहा हूं ये आपको? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना छोटी सोच के साथ बड़ा बन नहीं सकते। और मैं आपको अभी भी चैलेंज करता हूं, अगर इतनी शिद्दत, इतना कमिटमेंट, जितना कि किसी भी वर्ल्ड लेवल के बिजनेसमैन और एथलीट में, उतना अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं आया, उतना सेक्रीफाइस करने की ताकत अगर आपके पास नहीं आई, उतना डिसीजन मेकिंग की ताकत आपके पास नहीं आई, तो कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो आप में से कई लोग कहेंगे सर इसका मतलब है मुझे बहुत फोकस्ड होना चाहिए, इसका मतलब है आपको मुझे बहुत कमिटेड होना चाहिए, इसका मतलब है मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो सर फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कहां आया? तो मैंने पहले दिन से एक ही चीज कही थी, 23 घंटे अपनी मेहनत, अपनी ट्रेनिंग, अपने फोकस पे भरोसा करो, 1 घंटा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। एम आई राइट? दोनों में बैलेंस चाहिए। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड दूसरे दिशा में जा रहा है और आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड राइट दिशा में है और आप कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो, काफी कुछ हो सकता है।
ओके काफी कुछ हो सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके मास्टर है लाइफ का। लेकिन आपने मेहनत भी करी 10-12 घंटे रोज और 1-2 घंटे रोज अपने माइंड को भी ट्रेन करा, मिरेकल्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? मिरेकल्स हो सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रॉन्ग दिशा में है, कॉन्शियस माइंड 22 घंटे मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं होगा। वापस से बता रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा फोकस्ड है या नहीं है, या पूरा फोकस्ड है लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं है, कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है, मिरेकल्स हो सकते हैं छोटे मोटे। लेकिन बड़े मिरेकल करने हैं, मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, 12 घंटे 15 घंटे मेहनत, 2 घंटे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, एंड यू कैन बिकम ग्रेट। दोस्तों पता है इंडिया उतने गोल्ड क्यों नहीं ला पाता जितने चाइना ला रहा है या यूएस ला रहा है? उसके पीछे रीजन ये है, हमारे खिलाड़ी को बोला जाता है मेहनत करो। खिलाड़ी पूरी जान डाल के मेहनत करता है, लेकिन खिलाड़ियों के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा, या उस लेवल के ट्रेनर, मेंटल कोचेस, माइंडसेट कोचेस इंडिया में या तो है नहीं, और हैं तो उनको तवज्जो भी नहीं दी जा रही। अरे कौन माइंड ट्रेनिंग से क्या होता है, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन से क्या होता है? आप विराट कोहली के इंटरव्यूज देख लो, उसके बारे में पढ़ लो, बोलता है मैच शुरू होने से पहले आई विजुअलाइज की क्या चाहिए मुझे, कैसे खेलना है। अगर कहीं पे भी हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो आई विजुअलाइज की मुझे इससे बाहर निकलना है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। विजुअलाइजेशन इज द पावर। सभी बड़े लोग इसके लिए 101% वो करेंगे, क्या कहते हैं, एडवोकेसी करेंगे। Am I right or wrong? ओके देख लीजिए। तो यहां पे मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, अगर आप में से कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, ओके टेल देम आई एम गोइंग टू कोच, आई एम रेडी टू कोच, ओके नेशनल लेवल टीम्स with their subconscious level. Okay, it's ready to coach, and I don't want money, I want more golds in India. Okay, that's what it is. एक भी गोल्ड आ गया अगर मेरी कोचिंग से, तो मेरे लिए तो मेरा पैसा वसूल है। इट्स ऑल राइट, मेरी मेहनत वसूल है। आई एम रेडी टू कोच। यस, कितना टाइम दे पाऊंगा ये तो बातचीत में ही पता हो पाएगा, कि महीने में 4 दिन, 2 दिन, 2 घंटा, 25 घंटा, डिपेंड करता है कि डू दे ट्रस्ट एंड डू दे बिलीव कि माइंड कोचिंग इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, माइंड कोचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत थोड़ी कम रह गई चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होना चाहिए। इज दैट ऑलराइट? क्योंकि मिरेकल्स होने के लिए दोनों माइंड्स में बैलेंस होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दिन और दिमाग में लड़ाई चलती रहती है दिन रात। कैसे लड़ाई चलती है देखिए, सबकॉन्शियस माइंड कहता है मुझे बारिश में भीगना है, बच्चा था बारिश में भीगता था, कितना मजा आता था, मुझे बारिश में भीगना है। बारिश कॉन्शियस कहता है चुप, बीमार हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, नाक बहने लग जाएगी, कल तेरा ट्रेनिंग है, गला खराब हो सकता है। लड़ाई हो गई दोनों के अंदर। चूंकि कॉन्शियस जाग रहा है, हालांकि कॉन्शियस से ज्यादा पावरफुल है सबकॉन्शियस, लेकिन कॉन्शियस एक पावरफुल हाथी की तरह है, सॉरी कॉन्शियस एक महावत की तरह है और सबकॉन्शियस पावरफुल हाथी की तरह है। एक बार महावत की बात हाथी मानने लग गया तो फिर वो बात मान लेता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है मुझे एडवेंचर ट्रिप्स पे जाना है, कॉन्शियस कहता है चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, देख पहले लोग गए थे, 50 लोग गए, उनमें से एक को चोट लग गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे पड़ोसी ने ऐसा। सबकॉन्शियस कहता है मुझे बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। कॉन्शियस कहता है बिजनेस में बड़ा रिस्क है, टेंशन बहुत है, चैलेंज बहुत है, कल को फिक्स पैसा नहीं आया तो अभी फिक्स तो आ रहा है, घर का किराया दे पा रहा है, राशन दे पा रहा है। दोनों के अंदर लड़ाई, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के अंदर जोरदार लड़ाई चल रही है। इसी को कहते हैं बहुत बड़ा गैप। दोस्तों पता है, कई लोग कहते हैं दिल मेरा कुछ और कह रहा है, दिमाग मेरा कुछ और कह रहा है। तो ये दिल और दिमाग क्या है? दिल, ये हार्ट कुछ बोल नहीं रहा है एक्चुअली। ये दिल और दिमाग कुछ नहीं है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, दैट्स इट। जिसको आप दिल कहते हो। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? यहां है? नो, सबकॉन्शियस माइंड यहां भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। ये कहा जाता है हर एक कोशिका आपकी बॉडी में जो है, हर एक सेल का अपना माइंड होता है। सो सबकॉन्शियस माइंड पूरी बॉडी में है। ओके, सो जब आप कहते हो ये दिल बोल रहा है, तो वो दिल एक्चुअली नहीं, सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। तो दिल कहता है भैया देख, खुल के एंजॉय कर। सबकॉन्शियस कहता है लोग हंसेंगे तो। सबकॉन्शियस कहता है दिल से पब्लिक के सामने बात कर, क्योंकि यही तरीका है। सबकॉन्शियस तो बोल देता है पब्लिक के सामने, कॉन्शियस कहता है नहीं नहीं, पब्लिक हंसेगी यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
सबकॉन्शियस कहता है चल कोई बात नहीं, दौड़ तो सही यार, एक्सरसाइज कर। कॉन्शियस कहता है लेकिन सुबह सर्दी है। माय डियर फ्रेंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में लड़ाई चल रही है। कभी कॉन्शियस कहता है चल उठना तो पड़ेगा, देख कभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। कभी सबकॉन्शियस कहता है नहीं आज मुझे आलस खा रहा है। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, खट 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 खट। एंड जब तक लड़ाई चल रही है तब तक क्या सफल हो पाओगे? नहीं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। रथ के दो घोड़े हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप कभी मंजिल तक पहुंच पाओगे? कभी नहीं। कभी थोड़ा ये खींचेगा इधर, कभी थोड़ा ये खींचेगा इधर, एंड कभी भी मंजिल पे पहुंच नहीं पाओगे। और पहुंच भी गए तो बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। दोस्तों, मैं हैप्पी थॉट्स में गया और वहां का जो तेज ज्ञान शिविर, महाआसमानी शिविर किया, वहां पे बताया गया सबसे लंबी सुरंग अगर दुनिया में कोई भी है, सबसे लंबी सुरंग अगर दुनिया में कोई भी है, सबसे लंबी यात्रा अगर दुनिया में कोई भी है, सबसे बड़ी यात्रा अगर कोई भी है, तो वो है दिल से दिमाग की यात्रा या दिमाग से दिल की यात्रा। ये 13 इंच की सुरंग है। यहां से आदमी यहां नहीं आ पाता, ऑलराइट, अपने दिल को फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन लेट मी टेल यू, आपका सबकॉन्शियस माइंड झूठ नहीं बोलेगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा। जो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ गया ना, वो तुरंत करना शुरू कर दो। ओके, तो आज मैं बात करूंगा थोड़ी देर के लिए डिसीजन मेकिंग में। ये जो डिफरेंस है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में, ये क्यों है, ये झगड़ा है, ये क्यों है, इसको हम कैसे दूर करें, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आर यू रेडी एवरीबॉडी? शेक योर बॉडी। यस यस, ओके, मेरे साथ बोलिए आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। ऑलराइट, एक बार फिर से बोल दीजिए, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैं बोलूंगा टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आपको बोलना है टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का मेरा दिन सबसे खुशियों भरा है। 1 2 3, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई एम द बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। Divine count now, divine bring gold, divine count now, divine bring gold, divine, 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 divine। आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स एंड कुछ छोटी छोटी चीजें दोस्तों, सो दैट यू कैन नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, व्हाट्स हैपनिंग। Alright, पावर ऑफ डिसीजन। सो पहली चीज, 29 तारीख का शो किसी कीमत पे आपको मिस नहीं करना है। आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी को बुलाना है, क्योंकि हमारे फॉर्मर मैग्निफिसेंट प्राइम मिनिस्टर साहब लाल बहादुर शास्त्री जी के सन सर सुनील शास्त्री जी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो हमारे साथ लाइव आने वाले हैं 29 तारीख को। बहुत बड़ा मौका है हम सभी के लिए। अब बड़ा सोच रहा है इंडिया, अब बड़े लोग जुड़ रहे हैं इंडिया के बड़े सोच के मुहिम में दोस्तों। और मेरी होस्ट रहेंगी मेरी ही एक स्टूडेंट स्फूर्ति, जो कि एक बहुत बड़ी ऑथर भी है एंड वेल नोन स्पीकर भी है। शी इज ऑल्सो ए कोच। एंड उसके अलावा दोस्तों 6 दिसंबर को मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि 6 दिसंबर को 8 से 9 PM आ रही है जेसिका कॉक्स, एक दुनिया की एकमात्र ऐसी लेडी जो कि बिना हाथों के पैदा हुई एंड स्टिल डूइंग ग्रेट। एंड उसके अलावा थिंक रिच शो में 12 दिसंबर को आ रहे हैं बहुत ही बड़ी शख्सियत, इंडिया के मर्सिडीज बेंज के सेल्स हेड, ये सैटरडे को आ रहे हैं। और 13 दिसंबर को आ रहे हैं एक अगेन बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जी। उसके बाद 20 दिसंबर को आ रहे हैं हमारे साथ रोहित जायसवाल सर। रोहित जायसवाल हैं डाबर इंडिया के हेड एंड बहुत ही बड़ी शख्सियत एंड मेरे प्रीवियस बॉस इन कोलगेट पामोलिव। एंड मतलब पूरा मंथ आपके लिए पावर पैक है, तो डोंट वरी, आपको मेरे को मिस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतनी पावरफुल चीजें और इतने ज्यादा पैशन के साथ दूंगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाऊंगा, अच्छी अच्छी चीजें करूंगा। आपकी जिंदगी बदलना मेरा कर्तव्य है दोस्तों। ये सारी चीजें लाइव होगी इस लिंक पे learn.askbsr.com/live। तो बार बार लिंक का आपको ये इंतजार नहीं करना, अरे लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया। सभी चीजें लाइव होगी learn.askbsr.com/live इस लिंक पे। और अगर आप यहां नहीं देखना चाहते, यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, तो उसी के नीचे यूट्यूब पे जाने का बटन होगा, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे आ सकते हैं www.youtube.com, मेरा चैनल कोच BSR, एंड यहाँ पे जो भी वीडियो चल रहा होगा वो लाइव होगा। ओके, सारे वर्कशॉप रिलेटेड कोई भी अपडेट और आने वाले कोई भी अपडेट आपको मिलेंगे learn.askbsr.com/thethinkrich में। एंड इस वर्कशॉप का फिलॉसफी याद रखिए,
When you support the world selflessly, the whole universe support you endlessly. जब दुनिया को आप सपोर्ट करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करेगा. शायद ये इतने अच्छे अच्छे लोग मुझसे इतने सालों में कभी कनेक्ट नहीं हुए, मैं जस्ट बिकॉज एंड ये आगे होके कनेक्ट हो रहे हैं. कोई ना कोई एक ईमेल पे कनेक्ट हो रहा है, कोई कैसे कनेक्ट हो रहा है. एंड लेट मी टेल यू, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस फिलॉसफी. सो दोस्तों, आप भी ये करना शुरू कीजिए. अगर आपको ये पूरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का वर्कशॉप चाहिए, रिकॉर्डिंग्स, तो 2400 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए. दोस्तों, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आप कीजिए ही कीजिए. इट इज माय रिक्वेस्ट, ताकि हम लोग अगला वर्कशॉप और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. देखिए, मेरी पर्सनल लेवल पे एक लिमिटेशन है, फाइनेंशियल लेवल पे एक लिमिटेशन है, लेकिन अगर आप सबने छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन किया एंड ये वर्कशॉप के सारे सेशन अपने कम से कम 5-5 बार देखे, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी. सो अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और इसके रिकॉर्डिंग्स पाना चाहते हैं, तो दिस इज द वे. और अगर आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट, या मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं. उस केस में आप जनवरी में से फ्री ऑफ कॉस्ट फिर से देख सकते हैं. जनवरी में बस फर्क ये रहेगा कि 27 दिन की जगह ये 15 दिन का होगा, और 15 दिन में टाइम 1.5 घंटे की जगह 2 या 2.5 घंटे का होगा. ऑलराइट, आज रात को इस सेशन के बाद मेरा एक फ्री वेबिनार है जिसका टाइटल है डिस्कवर योर विजन. बहुत प्यारा वेबिनार है. विजन क्या होता है, क्यों होता है, उसके ऊपर जानकारी आपको मिलेगी. 9 से 10:30 बजे तक ये वेबिनार है. सो YouTube पे ही लाइव होगा. learn.askbsr.com/thethinkrich पे आप रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं. एंड यू नो, अगर आप में से कोई भी ट्रेनर बनना चाहता है, तो ट्रेनर बनने का प्रोसेस क्या है, ट्रेनर बनने के लिए क्या लगता है, कैसे लगता है, मेरी तरह मोटिवेशनल स्पीकर अगर आप बनना चाहें, तो 29 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. 29 तारीख को 29th of November, ऑलराइट, संडे है. ओके, 11 बजे से 1 बजे तक. एट द सेम टाइम दोस्तों, 1400 लोगों ने आप में से वॉलंटियर्स के लिए रजिस्टर किया है. तो सारे वॉलंटियर्स की मेरे साथ मीटिंग होगी 29 नवंबर को, 29 नवंबर को शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में. ओके, 29 नवंबर संडे ही है, तो संडे को मतलब मुझे 3 बैक टू बैक प्रोग्राम डिलीवर करने होंगे. 11 से 1, दूसरा 29 तारीख को ही शाम को 4 से 5, और उसके बाद शाम को हमारा ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है, और उसके बाद शास्त्री सर हमारे साथ आ रहे हैं. सो ये रजिस्ट्रेशन लिंक सबके लिए ओपन नहीं रहेगा. जो भी वॉलंटियर के लिए रजिस्टर कर रहा है, उन्हीं को ये रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा. ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, मैं खबरी ऐप करके पॉडकास्ट है, जैसे यूट्यूब वीडियोस के लिए वैसे ही वॉइस के लिए खबरी है इंडिया में सबसे टॉप पे. सो खबरी में मैं आज लाइव था शाम को 4 से 5 बजे. तो मेरे काफी सारे पॉडकास्ट वहां जा रहे हैं. आपको अगर ऑडियो में मेरे चलना है, गाड़ी चलाते समय मेरे ऑडियो सुनने हैं, या ऐसे कोई भी चीजें मुझे देखनी है, तो आप मेरे खबरी के लिंक को नीचे देख सकते हैं, https://sharelink.khabri.app. लेकिन ये एंड्रॉइड ऐप है, ये आपकी इसकी ऐप नहीं है, किसकी, आईफोन की ऐप नहीं है. तो अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे. एंड्रॉइड से आप इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं गाड़ी चलाते चलाते. ऑलराइट दोस्तों, रिट्रीट की बात चल रही थी. रिट्रीट इज, कांग्रेचुलेशंस, रिट्रीट इज फुल. रजिस्ट्रेशंस फॉर दिसंबर रिट्रीट आर फुल. दिसंबर की रिट्रीट पूरी तरह से फुल हो चुकी है, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग 100 लोग नहीं इकट्ठा करना चाहते. सोशल डिस्टेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, मास्क भी इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजर भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. तो ये रिट्रीट के रजिस्ट्रेशन फुल हो गए. लेकिन आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट अभी भी आ रही है, सर आई वांट टू जॉइन द रिट्रीट एंड दिस एंड दैट. तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जनवरी महीने में 29 जनवरी, 30 जनवरी एंड 31 जनवरी को एट पुष्कर अगेन इन्वेस्टमेंट इज द सेम. All right, so you can continue for the registration for the month of January. At the same time, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कोच BSR मेरे इंस्टाग्राम पे ask BSR hashtag के साथ जरूर पूछ सकते हैं. And YouTube and all, you can live. सर्टिफिकेट क्लेम करना ना भूले, लेकिन सर्टिफिकेट से पहले एक क्विज होगा, और क्विज वही पास कर पाएगा. 80% मार्क्स आना जरूरी है, वही पास करेगा जो सारे सेशन अटेंड कर रहा है. ओके, थैंक यू. चलिए, 1,08,000 लोगों तक ये वर्कशॉप पहुंचने वाला है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू रियली रॉक. सो लेट्स गो टू टुडेस टॉपिक. थैंक यू फॉर दिस पेशेंस. शेक योर बॉडी. यस दोस्तों, आई नो 5-7 मिनट ये जो मिलता है अनाउंसमेंट के लिए, कई लोग सोचते हैं मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, या मैं अपने आपको. दोस्तों, ये अनाउंसमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों के लिए पॉडकास्ट जरूरी है. कोई वॉलंटियर्स बनना चाहता है, कोई बहुत आगे जाना चाहता है, कोई ट्रेनर बनना चाहता है. सो प्लीज डोंट माइंड. ओके, प्लीज डोंट माइंड. सो आइए, लेट्स गो एंड चलते हैं, सुनते हैं डिसीजंस के बारे में. देखिए दोस्तों, डिसीजन मेकिंग वैसे तो एक बहुत सिंपल वर्ड है,
लेकिन पीढ़ियों तक मिडिल क्लास बने रहने के लिए डिसीजन मेकिंग का कमजोर होना ही जरूरी है। और कमजोर है इसीलिए पीढ़ियों दर पीढ़ियां मिडिल क्लास बने हुए हैं काफी लोग। 100 साल से मिडिल क्लास, 300 साल से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या एंड यू नो जब किसी मिडिल क्लास को मिडिल क्लास कह दो तो उसे गाली भी लगती है। अच्छा, मैं मिडिल क्लास ही हूं, ओके, लेकिन यस, समझ चुका हूं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और मिडिल क्लास रहने में तो दोनों तरफ से सैंडविच बनने वाली है। देखिए, जितने भी कानून बन रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाई कर रही है, किन के लिए कर रही है? या तो गरीबों के लिए या अमीरों के लिए। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रहा कोई। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ना तो आप वोट बैंक है, उनको यह भी पता है कि आप वोट देने आधे लोग जाते हैं, आधे लोग नहीं जाते हैं। उनको यह भी पता है कि ना तो आप बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, ना इलेक्शन में पार्टी को फंड करते हैं, अच्छा, न ही आप प्रचार करते हैं। तो इलेक्शन वाली पार्टीज जानती है इनके लिए कुछ मत करो यार, ये तो ऐसे ही सारा टैक्स यही देंगे। सारे टैक्स का प्रॉब्लम मिडिल क्लास के ऊपर है। सारा का सारा कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं आपके लिए है। बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, वो किसी को मार दे, पीट दे, थोड़ी सी देर के लिए पुलिस 2 डंडे मार के छोड़ देगी, आप करके देखो। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हम मिडिल क्लास क्यों बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल हमारी बहुत वीक है, क्योंकि हम चुनाव नहीं करते उन चॉइसेस का जो कि हमें बिलियनर बना सके, आगे बढ़ा सके या पावरफुल बना सके। हमारे चुनाव कैसे होते हैं, कुछ उदाहरण देता हूं, और उदाहरण से शायद क्लियर हो जाएगा। मैंने एक कार खरीदी थी 2014 में, स्कोडा रैपिड, एंड 2015 में मैं किसी मेरे एक मित्र के घर गया, तो उसकी वाइफ बोली, अरे आपने कार खरीदी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया भूपेंद्र, वाओ। आपको पता है, हंसने लगे वो लोग, आपको पता है हमारे हस्बैंड भी कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से खरीदना चाहते हैं। पिछले 1.5 साल में पूना के सारे शोरूम हमने घूम लिए हैं, 2-2, 3-3 बार, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया कार खरीदने का, क्योंकि हर बार इनको लगता है डील अच्छी मिल सकती है और भी 50,000 कम हो सकते हैं। तो मैंने उनको बोला, हंसते हंसते, मन में ही बोला, उनको तो क्या बोला, उस समय तो हम हंस लिए, एंजॉय कर लिए। फिर कार के बारे में बात हुई, मैंने कहा मैंने तो ऐसे डिसीजन ले लिया, मैं तो ऑडियो सुना, एक ऑडियो में बोला बाय स्कोडा रैपिड टुडे, पे आफ्टर 2 years। मैं उधर गया, उससे पूछा डाउन पेमेंट, कार का प्राइस क्या है, वो तो पूछा भी नहीं, पूछा डाउन पेमेंट, बोला 3.25 लाख, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, मैंने कहा लोन करवा दे, बाकी सब देखा जाएगा। बोला यार तू एक ही शोरूम गया, तूने ज्यादा जानकारी नहीं ली और तूने कार खरीद ली। मैंने कहा मेरे लिए खरीदना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरा गोल था 12 जनवरी 2014 को मेरे घर में कार चाहिए मुझे। अरे यार तुम कार जितनी बड़ी चीज खरीद रहे हो, तुम जांच पड़ताल नहीं कर रहे हो? क्या जांच पड़ताल कर लोगे, कितनी कर लोगे? नई कार में कितना गुंजाइश हो जाएगा? 50,000 बच जाते हैं, लेकिन 1.5 साल तो बच गया मेरा। 50,000 नहीं बचे होंगे मेरे, लेकिन मेरा 1.5 साल बचा। कार आते ही कंप्लीशन हो गया, कार आया, कंप्लीशन हो गया। कंप्लीशन होते ही मेरी ऊर्जा कार से रिलीज हो गई। मेरी ऊर्जा कार से रिलीज होते ही मैंने अपनी ऊर्जा लगाना शुरू कर दिया अपने काम में, क्योंकि अब मुझे पता था कार का लोन का ईएमआई चालू हो जाएगा, तो मुझे तो जल्दी काम करना है। और उसके अलावा मेरा दूसरा गोल था 12 जनवरी 2015 को घर लेना है। मैंने कहा कार खत्म, अब घर लेने का कार्यक्रम शुरू। डिसीजन मेकिंग दोस्तों, डिसीजन मेकिंग। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक इंसान अगर कार खरीदने के लिए 50 बार 50 अलग अलग शोरूम विजिट कर रहा है, और वो इंसान का सैलरी था 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए महीना। 2.5 लाख रुपए महीने वाला आदमी हर सैटरडे संडे को घर से निकलता है, 4 शोरूम विजिट करता है, 50 ब्रोशर लाता है, हुंडई, मारुति, स्कोडा, यू नो, जो भी आती है, किसान, ईसान, XYZ, जो भी, राइट, सब बोलता है ऑडी तक हमने सब देख ली। पहली बात तो ऑडी आपको चाहिए, मैंने भी आपको बताया, जाइए
वो अगर आपकी ड्रीम कार है, अभी नहीं ले सकते, जाइए टेस्ट ड्राइव लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। एक्सपीरियंस करने के लिए आप जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, ऐसे ही इधर से निकल रहे हैं, ये भी देख लेते हैं, अच्छा इधर से निकल रहे हैं, ये भी देख ले, बिना प्लान। क्योंकि आपने अपना सैटरडे संडे आपने कुछ प्लान ही नहीं किया, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं करने के लिए। मैं कहता हूं अगर ये कार में उस बंदे ने मान लीजिए पूरे साल भर घूम के 1 लाख रुपया बचा भी लिया, तो साल भर में इसने 50 सैटरडे संडे में से एटलीस्ट 25 सैटरडे संडे भी लगा दिए, तो ही स्पेंट 25 प्रोडक्टिव डेज या 25 प्रोडक्टिव वीकेंड, सॉरी 50 प्रोडक्टिव डेज। एंड लेट मी टेल यू, उसकी वाइफ कहती है ये तो हर चीज इंटरनेट पे भी रिसर्च करता है, मतलब इंटरनेट पे भी उसने कितना समय लगाया होगा, कुल मिला के उसने 50-60 दिन का समय 1 साल में लगा दिया सिर्फ एक चीज में, कार कैसे खरीदें और कैसे 1 लाख रुपया बचाएं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि स्कोडा और होंडा सिटी में ज्यादा फर्क है कि नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि दोनों चलाने के बाद मुझे तो सेम ही लगती है और मुझे सेम डेस्टिनेशन पहुंचा देती है। अभी ये ली इसका शेप थोड़ा अलग है, ये ली थोड़ा अलग है, इसमें हो सकता है 1% ज्यादा कंफर्ट हो जाए, इसको लेने में शायद 1% ज्यादा बच जाए, दैट्स इट। लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये 50 दिन बचाना, क्योंकि मुझे ये पता है इन 50 दिन में ज्यादा नहीं तो मैं 50 बुक्स पढ़ सकता हूं। अब मुझे ये बताइए, एक ऑर्डिनरी आदमी, चलिए मेरी स्पीड 50 बुक पढ़ने की है, 200 पेजेस की, एक ऑर्डिनरी आदमी सब कुछ मेहनत करे तो आराम से 10 किताबें पढ़ सकता है 50 दिनों के अंदर। लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी कहता है बुक पढ़ के 50 किताबें पढ़ के 1 लाख तो नहीं बच रहा ना, इसको कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश। पेनी वाइज पाउंड फूलिश नहीं, 1 लाख बचाना, 1 लाख बचाना, 1 लाख बचाना, 1 लाख बचाने के लिए मजदूरी करनी है मैं खुद कर लूंगा, 1 लाख बचाने के लिए सिलेंडर खुद उठाना है मैं खुद उठा लूंगा, 1 लाख बचाने के लिए दिन भर किसी का खड़े होकर इंतजार करना है मैं कर लूंगा, 1 लाख बचाने के लिए मुझे यहाँ ऐसे जाना है, इस तरह से जाना है, मैं चला जाऊंगा, 1,000 रुपए बचाने के लिए मुझे 3 दिन बस में ट्रेवल करना है मैं कर लूंगा, लेकिन फ्लाइट का 1,000 एक्स्ट्रा लग रहा है इसलिए वो 1,000 मैं नहीं दूंगा। ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश कहलाता है। पेनी वाइज पाउंड फूलिश का मतलब है 1,000 या 1 लाख बचाने के लिए अपना करोड़ों का फ्यूचर का नुकसान कर देना। और एक मिडिल क्लास फैमिली ये कर रही है, हर रोज कर रही है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में इतनी वीकनेस है कि बस पूछिए मत, सपने सबको देखने हैं। मैं कई लोगों से बात करता हूं, सर बहुत बड़ा बनना है, सर बहुत बड़ा बनना है सर, लेकिन क्या करूं सर, अभी बिल्कुल पैसा नहीं है आपका 3,000 रुपए का कोर्स लेने के लिए। मत लो, 3 साल और मत लो। जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। अगर इसमें ड्रामेटिक चेंज लाना है तो ड्रामेटिक एक्शन होना है और ड्रामेटिक डिसीजन होना है। क्या हो जाएगा? जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैंने अपने आप से एक ही चीज कही, मैंने कहा मेरा घर चलाने के लिए, मतलब मैं उस समय अनमैरिड था, मैंने कहा पूना में मेरा रहने का 4,000 रुपए किराया, 4,000 रुपए टिफिन, 2,000 रुपए का बाइक का पेट्रोल, 1,000 रुपए फोन, 11,000 रुपए मुझे चाहिए। अगर मेरे को जॉब छोड़ दी मैंने और मैं बिजनेस में आ गया या अपने प्रोफेशन में आ गया जो ट्रेनिंग का प्रोफेशन है, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बुरा ये होगा कि वो 1 साल 2 साल मुझे कमाई नहीं मिलेगी। कट कट कट। मैंने उस समय कट 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 बोला, अभी तो ठीक है, वो स्टोरी बता रहा हूं। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे कमाई नहीं मिलेगी। कमाई नहीं मिलेगी, मेरा खर्चा कितना है? 11,000 रुपए। मान लीजिए बिजनेस करूंगा तो 2-4 हजार रुपए मेरी जेब से, वेबसाइट का, विजिटिंग कार्ड का, इनका भी जाएगा। मैंने कहा 15,000 से 20,000 रुपए मेरा पर मंथ का खर्चा होगा। 1 साल में 2,40,000, और 2 साल भी अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो 5,60,000 रुपए या 80,000 रुपए मेरे ऊपर लोन चढ़ेगा 2 साल में। क्या मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं 5,60,000 की? मैंने कहा यस। अंदर से आवाज आई यस। क्या ये रिस्क ऐसी है जिससे कि मेरे को मरना पड़े? नो। क्या ये रिस्क ऐसी है कि मैं 5 लाख रुपए 2 साल में दिन रात अपना देके ट्रेनिंग से नहीं कमा पाऊंगा? नो, मैं कमा सकता हूं। यस, आई विल बी एबल टू रन। तो फिर भूपेंद्र क्यों डर रहा है यार? देखा जाएगा, होगा जो। फट से रेजिग्नेशन डन। दोस्तों, ये होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का तरीका किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। आदमी 3-5 हजार के लिए, मतलब मुझे शर्म आती है कई बार, मुझे बड़ा दया आती है इन लोगों पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार इनका जिंदगी कैसा होगा आगे। क्योंकि ये जिंदगी, मैं जब
2007 में 8 में जब मैं इस तरह की चीजें सुन रहा था तो मुझे एक टीचर ने कहा, भूपेंद्र अगर तूने अपने सपनों की जिंदगी अपने हिसाब से डिसीजन लेके नहीं बनाई तो मैं तेरा भविष्य अभी बता देता हूं, तेरा भविष्य होगा कि तू कभी जिंदगी में 50,000 से 5 करोड़ पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी जिंदगी डर से चलेगी, तेरी जिंदगी इनडिसाइसिवनेस के साथ चलेगी। और उन्होंने एक बहुत बड़ा जबरदस्त वाक्य बोला, उसको ध्यान से सुन लो, समझ लो और उसको अपने जहन में बैठा लो। उन्होंने बोला, डिसीजन को नहीं लेना या डिले करना भी एक डिसीजन है। उन्होंने क्या कहा, डिसीजन को नहीं लेना या फिर डिसीजन को डिले करना भी एक डिसीजन है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो मुझे समझ में आ गया कि यार वास्तव में डिसीजन लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा, भूपेंद्र अगर तूने डिसीजन नहीं लिया तो मैं बता देता हूं, आज तू 30,000 कमा रहा है, फिर तू सोचेगा करूं नहीं करूं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊं नहीं जीऊं, उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग सीखूं नहीं सीखूं, ओ माय गॉड 11,000 रुपए सैलरी है, उसमें से पब्लिक स्पीकिंग का 7,500 रुपए लग रहा है, कैसे होगा। तेरी जिंदगी में बता देता हूं, 30,000 रुपए से तू धीरे धीरे 1 साल बाद 35 पहुंचेगा, 5 साल बाद तू 50 पहुंचेगा, 60 पहुंचेगा, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते तू एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करेगा, फिर तेरी सैलरी 1 लाख हो जाएगी, 1 लाख की सैलरी के आसपास तेरे 2-3 बच्चे हो जाएंगे, एंड तेरी शादी वादी हो रही होगी, तू हनीमून पे कहीं जा नहीं पाएगा स्विट्जरलैंड, तू कभी अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा नहीं पाएगा, तू अपने माँ बाप के कभी सपने पूरे कर नहीं पाएगा, एंड तेरे को छोटी सी जिंदगी होगी, हर रोज कॉम्प्रोमाइजेस से भरी होगी, हर रोज तुझे सोचना पड़ेगा, सब्जी में ये वाली बनाऊं, पनीर बनाने में तो जो रोज पैसा ज्यादा लग जाता है, इसलिए अपन तो दाल से ही काम चला लेते हैं। तेरे को हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तू जाएगा कहीं बाहर, तेरे को सूट पसंद आएगा 20,000 रुपए का, लेकिन तेरे को पहनना पड़ेगा 3,000 रुपए का सूट, एंड तू कभी भी अपनी मर्जी से कभी अपनी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, तू कभी मर्जी से अपने अपनी अपनी दुनिया बना नहीं पाएगा, तू अपने सपनों की दुनिया में कभी जी नहीं पाएगा, तू कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, तू हमेशा जलता रहेगा उन लोगों से जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तू हमेशा उन लोगों की स्टोरीज पढ़ता रहेगा जो बहुत आगे बढ़े हैं। तेरी स्टोरी कभी बनेगी नहीं, तेरे ऊपर कभी कोई किताब लिखी नहीं जाएगी, तेरे ऊपर कभी कोई मूवी बनाने के लिए आएगा नहीं। वो तो थोड़ी सी गलत लैंग्वेज में बोलते थे, कभी गाली वाली दे के बोलते थे, मैं तो आपको बड़ा प्यार से बोल रहा हूँ, इधर लगी सीधी, इधर लगी सीधी। क्योंकि जब गाली से कोई बोलता था ना कि तेरे जैसा कभी कुछ कर नहीं सकता, तो इधर लगती थी सीधी, और बात समझ में आ जाती थी 1 सेकंड में कि वास्तव में यार ये छोटी सी जिंदगी जीने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, और कॉम्प्रोमाइजेस से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। जो कर रहे हो वही करते आए तो वही मिलता रहेगा, जितना मिलता आएगा आया है, सॉरी, नो, जो कर रहे हो वो ही करते रहे तो और ज्यादा कम मिलेगा। कैसे? अगर मैं जो कर रहा था वो ही करता रहता, नौकरी पे रोज जाता रहता, तो आज मेरी सैलरी शायद 2 लाख होती, लेकिन फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता। उस फ्रस्ट्रेशन के कारण हो सकता है घर तो बड़ा ले लिया होता, लेकिन सुकून कभी मिलता नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जा रही होती, रोज डर में जी रहा होता, मिड लाइफ क्राइसिस में जी रहा होता। अब नौकरी चली गई तो जब 20,000 थी तब नौकरी छोड़ देता तो सब कुछ सही था, अब 2 लाख की नौकरी छूट नहीं सकती, अब तो डर और ज्यादा, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे 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 नीचे, डर बढ़ता जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जाती जा रही है, स्ट्रेस, तनाव, हार्ट अटैक, एंड गॉड नोज व्हाट। कट कट कट। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। एक किताब लेने का डिसीजन लेने से पहले ना आदमी सोचता है 250 रुपए की किताब, 250 रुपए की किताब, अरे देखना तेरे पास पीडीएफ कॉपी है क्या इसकी, देख देख देख, ढूंढना कहीं से, इंटरनेट से ढूंढना, मैं पीडीएफ पढ़ लूंगा यार, क्यों 250 खर्च करूं। पीडीएफ, अभी मेरे को अलग तरीके से बोलना चाहिए, दादाजी भी नहीं पढ़ पाए जनरली, इसीलिए मैं पीडीएफ पूरी फ्री दे रहा हूं, ले लो, क्योंकि जिसमें पावर है ना वो पढ़ लेगा। लेकिन 250 रुपए की किताब जनरली आदमी खरीदने से पहले 500, 1000, लाखों बार सोचता है, जबकि वो किताब जिंदगी भर के लिए है। उसको रिपीट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, आपके बाद आपका बच्चा रीड कर सकता है, इतने सालों तक आपके पास पड़ी रह सकती है। आपने खरीद के रख ली, कोई बात नहीं, 5 पेजेस आपने पढ़े, 5 आपकी वाइफ ने पढ़े, 5 आपके बच्चे ने पढ़े, 5 किसी और ने पढ़े, सबका भला होता जाएगा। लेकिन
नहीं करेंगे वो 250 रुपए की किताब, लेकिन केबल 250 बहुत जरूरी है, रोज हर महीना जरूरी है, उसके बिना तो ऐसा डिसीजन, पुअर डिसीजंस क्रिएट पुअर लाइफ। वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पुअर डिसीजंस क्रिएट पुअर लाइफ, रिच डिसीजंस क्रिएट रिच लाइफ। Poor decisions create poor life. Rich decisions create rich life. मैं अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ कहीं पे मिलता हूं, बात चल रही होती है गाड़ी खरीदने की, राइट? बोलते हैं ये वाली गाड़ी पसंद बहुत है लेकिन इसमें मेंटेनेंस बहुत हाई है, ये वाली गाड़ी पसंद बहुत है लेकिन 2 लाख रुपए ज्यादा महंगी आ रही है, ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, ये गाड़ी बहुत पसंद है लेकिन ये डीजल में आ रही है, सॉरी पेट्रोल में आ रही है, डीजल में आती तो लेता। ये गाड़ी बहुत पसंद है लेकिन इसका 2 साल पुराना मॉडल मिल जाए, 2 साल चली हुई मिल जाए। अरे बॉस, तुम्हें गाड़ी भी खरीदनी है और तुम्हें डिस्कशन भी किस पे करना है? पार्ट्स महंगे हैं, मेंटेनेंस में लेनी है कि नहीं लेनी, कौन सी ब्रांड लेनी है आज लिख दो और वो ले लो जाके। पार्ट्स वार्ट्स कुछ नहीं देखते, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं। मेरा सपना है, मुझे लेना है। अगर इस तरह से सोचेंगे तो कभी कोई लेता ही नहीं बड़ी गाड़ियां, कभी कोई लेता ही नहीं इस हेलीकॉप्टर। कैन यू इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, इट डजंट मीन कि आप लेविशली खर्च करो। अगर आपकी कैपेसिटी है 3 लाख खर्च करने की तो ऑल्टो लो, लेकिन एक बार डिसीजन लेके ये मत सोचो कि अरे गाड़ी तो पेट्रोल। मैं आपको बताता हूं, मेरे घर में हुआ ये सब, ऑलराइट, एंड आई नो सबके घर में कहानी है ये। जब मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी, पापा को बड़ा टेंशन हो गया, अरे बेटा गाड़ी, अपन तो स्कूटर चल रहे हैं, वही एकदम से गाड़ी का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ये हर घर में होता है दोस्तों। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आपने पहली बार गांव से सिटी विजिट की तब आपको सब कुछ ऐसा लगा होगा, ओह माय गॉड यहाँ तो सब कुछ बड़ा है, यहाँ तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, गांव में तो कुछ खर्चा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही एक आदमी सिटी में आ जाता है, थोड़े से दिन के बाद उसका सिटी के खर्चे के हिसाब से सब कुछ एडजस्ट होने लग जाता है, एंड धीरे धीरे जब वो गाँव जाता है, अब उसको गाँव में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब वो ही सिटी का आदमी जब मेट्रो सिटी, दिल्ली, बॉम्बे इधर आ जाता है, पहले कुछ एक आधा साल बड़ा स्ट्रगलिंग में होता है, समझ में नहीं आता उसको, अरे यहाँ तो सबके पास बड़ी गाड़ियां, सब बाहर खाते हैं, सबके पास ये सब। 2-3 सालों के अंदर वो ऐसा एडजस्ट होता है मेट्रो में कि अब वो छोटी सिटी में थोड़े दिन के लिए तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में अच्छा नहीं लगता। और यहां से कोई अगर अमेरिका चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, तो वो थोड़े दिन वहां अनकंफर्टेबल रहता है, धीरे धीरे वो वहां के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। एम आई राइट? मैं कहता हूँ बड़े सपने देखो, बड़े सपनों को हंट करो, घबराओ मत खर्चा कितना लगेगा। एक बार वो लाइफ जीने की आदत पड़ गई ना तो खर्चा मैनेज होगा। लेकिन लोग सोचते हैं सर कोर्स ले लिया तो गरीबी हो जाएगी। अरे भाई मेरे, कोर्स लेके गरीबी नहीं होगी, कोर्स नहीं लेने से तो कितना गरीब हो जाएगा ये पता ही मत समझ। किताब नहीं लेने से गरीबी हो जाएगी, अरे किताब नहीं लेने से कितनी गरीबी होगी ये सोच ले। सर वो वहां पे जाना पड़ेगा, उस आश्रम में जाना पड़ेगा, वो 5 दिन का रेजिडेंशियल का 2,000 रुपए 3,000 रुपए ले रहे हैं सर, और इतना दूर ट्रेवल है सर, 20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, या अगले स्टेट में है सर, जाऊं कि नहीं जाऊं? जाओ, आज जाओ। बोलते कैसे? सर बहुत पैसा लग जाता। सर एक बात बता रहा हूँ, लॉस तो आपका वैसे भी हो रहा है, कई तरीके से हो रहा है। आप नहीं चाहते हुए भी कभी बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है, आप नहीं चाहते हुए भी कई बार एक बार अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं, उधर भी तो झक मार के आपको खर्चा करना पड़ता है। लेकिन सोच समझ के अगर आपने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया तो आई एम टेलिंग यू, यू विल बी वेरी वेरी पुअर। पुअर डिसीजंस मेक पुअर पीपल, रिच डिसीजंस मेक रिच पीपल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ डिसीजन मेकिंग में, और बहुत दिल से कह रहा हूँ, समझ लीजिए इस चीज को। जितने पावरफुल लोग बने ना वो डिसीजंस के कारण बने। होंडा जी, नाम सुना होगा आपने। होंडा कंपनी जब बनी तो सोइचोरी होंडा, ये एक स्टूडेंट थे आईआईटी या जो भी आईटीआई वगैरह कुछ कर रहे थे,
वहां पे इन्होंने एक पिस्टन रिंग बनाने लगी। लोगों ने पूछा, अरे पिस्टन रिंग कहाँ जाएगी? अरे मैं तो टोयोटा के लिए बना रहा हूँ ये। आर यू मैड होंडा? तू तो अभी स्टूडेंट है, तूने कुछ किया नहीं है और तू टोयोटा को तू पिस्टन रिंग भेजेगा? अबे तेरी मत मारी गई है, तेरी अक्कल कहीं घास चरने गई है। तेरे जैसे गधे की पिस्टन रिंग टोयोटा क्यों खरीदेगा? होंडा ने किसी की बात नहीं सुनी। टोयोटा के पिस्टन रिंग जैसे तैसे उन्होंने रेडी की। टोयोटा के पास गए, ये मैंने पिस्टन रिंग रेडी की है, कैन यू प्लीज बाय इट, डू यू नीड इट, आपकी कार को मजेदार बना देगी। टोयोटा कहा रिजेक्ट, गेट लॉस्ट। होंडा ने वो पूरा धनराशि लगा के क्या सुना? गेट लॉस्ट। होंडा ने क्या किया? डिसीजन लिया। वाइफ, शादी हो गई थी अर्ली एज में, वाइफ के गहने बेच दिए, वापस से अपनी पूरी ऊर्जा और 2 साल का समय लगाया पिस्टन रिंग बनाने में। और इस बार क्या हुआ? टोयोटा ने कहा, हेलो होंडा, यू मेड अ ग्रेट पिस्टन रिंग, वाओ, खरीद लेते हैं हम, लगाओ फैक्ट्री, बनाओ इसको तो बहुत सारा, हमें चाहिए ये। होंडा की मेहनत कामयाब होती दिख रही थी। लोगों ने कहा, वाह वाह वाह, एक छोटे से बच्चे ने ऐसी पिस्टन रिंग बना दी जिसको टोयोटा ने खरीद लिया। रातों रात सफलता आने लगी, फैक्ट्री बन के तैयार होने लगी। लेकिन पैसे नहीं थे, तो होंडा साहब ने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ किया, इधर से लोन लिया, ऐसा किया वैसा किया। डिसीजन लिया कि यार अब टोयोटा ने लिया है, फैक्ट्री लगा दे। फैक्ट्री लग के खड़ी हुई, प्रोडक्शन चालू हो चुका था। एंड इतने ही दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ऊपर से एक प्लेन उड़ा और उसने एक बॉम्ब गिराया होंडा की फैक्ट्री पे। होंडा की फैक्ट्री तहस नहस। होंडा साहब ने पहले ही लोन वोन लेके फैक्ट्री बनाई थी, उनके पास अब पैसा बिल्कुल नहीं था, तो उन्होंने खुद ने फैक्ट्री कैसे बनाते हैं वो सीखा। अपने कंक्रीट वगैरह मिक्स करने के लिए उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ टैंक्स या कुछ कुछ चीजें, फ्यूल वूल कहीं पे छूटा हुआ था, उसको कलेक्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे फिर से फैक्ट्री बनी एंड फैक्ट्री बन के तैयार हुई, प्रोडक्शन चालू हुआ। एंड इस बार अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आके फैक्ट्री फिर से धराशायी। होंडा के पास अब पैसे नहीं थे, होंडा साहब के पास अपनी कार चलाने के लिए भी, पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं थे। घर बैठना पड़ा एंड घर बैठे रहे। बोला अब क्या करूं, पिस्टन रिंग तो बनाई थी, सब कुछ लुट गया, क्या किया जाए। लेकिन होंडा ने हिम्मत नहीं हारी। होंडा बैठ गए घर पे। एक दिन कार में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी साइकिल ली और साइकिल के वहां छोटा सा मोटर लगाया और उससे उन्होंने मार्केट जाना शुरू किया। तो बड़ा आविष्कार ही लगा लोगों को, अरे करामाती लगा, साइकिल पे मोटर, अरे वाह, ये तो मोटरसाइकिल बन गई। तो सभी लोगों ने कहा, अरे ऐसी तो हमें भी चाहिए, ऐसी तो हमें भी चाहिए, ऐसी तो हमें भी चाहिए, आप हमें भी बनाए। तो होंडा ने लोगों का जब नीड देखा तो एक दो तो जैसे तैसे बना के दे दी, बट अब ज्यादा करने के लिए फैक्ट्री खड़ी करनी है, पैसा नहीं है। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग सॉलिड होता है तो पैसा आता है। डिसीजन लिया, मुझे तो फैक्ट्री बनानी है, चाहे जो हो जाए, आई वॉन्ट टू मेक अ फैक्ट्री। लेकिन क्या करूं क्या करूं? जब डिसीजन फर्म होता है तो आइडिया आता है। डिसीजन फर्म था कि फैक्ट्री बनानी है, तो होंडा जी ने सोचा कि अब सोचने के लिए एक ही दरवाजा है, क्योंकि पीछे के सारे दरवाजे बंद हो गए। अपन ने बंद कर दिए कि भाई बनेगी नहीं बनेगी फैक्ट्री, देखते हैं। नहीं, देखते नहीं है, बननी है फैक्ट्री। फैक्ट्री बनेगी, मेरे को ये बनाना है, ये डिसीजन मेरा है। अब इस डिसीजन को एग्जीक्यूट कैसे करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना शुरू किया। तो उन्होंने जापान में 1800 साइकिल डीलर्स थे, उन सभी के एड्रेस निकाले और उनको पत्र लिखा कि मैंने ऐसा एक आविष्कार किया, ऐसी एक साइकिल बनाई है जिसमें मोटर लगा दी है और ये पहली मोटरसाइकिल है, आप इसे एडवांस में 3-3 का, 4-4 का, 1-1 का ऑर्डर दे दीजिए और एडवांस पैसा भेज दीजिए, मैं आपको ये डिस्काउंट दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। 1800 लोगों में से 30 साइकिल ओनर्स ने, या सॉरी 300 ने उनको ऑर्डर दिया, एक एक साइकिल का, दो दो साइकिल का। एंड होंडा साहब के पास एडवांस में पैसा आया और फिर फैक्ट्री खड़ी हुई और उसके बाद होंडा मोटरसाइकिल बनी और उसके बाद फिर आपको पता है होंडा कार एंड होंडा एम्पायर। डिसीजन मेकिंग, दोस्तों कितना पावर है इस डिसीजन मेकिंग में, समझिए। लेकिन हम पेनी वाइज पाउंड फुलिश, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, रोज साला कितना भी समझा लू ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, इधर आके सुनते हैं सब, लेकिन फिर जैसे ही डिसीजन लेने की बात होती है दोस्तों। एंड आज जब डिसीजन मेकिंग के बारे में बोल रहा हूं, डायरेक्टली हिट भी कर सकता हूं आपको, लेकिन आई नो उसको कई लोग इस तरह से ले लेंगे, बीएसआर को जरूरत होगी। दोस्तों ईमानदारी से बोलूं, ये पूरे 30 सेशन खरीद लीजिए एंड मेक श्योर इनको कम से कम 5-5, 10-10 बार देख लीजिए। अभी आप नहीं सीखे हो, ये छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। आपको लगा कि हाँ सुना था,
अगर मैं आपसे पूछूं ना पावर ऑफ इंटेंशन में मैंने क्या बोला, तो आपको इतना सा याद होगा कि हाँ, इंटेंशन होती है, अच्छी होती है, इंटेंशन का पावर होता है। यू कांट एक्सप्लेन इट। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि 3 बिलीफ सिस्टम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपको कईयों को तो 3 बिलीफ सिस्टम कौन से थे ये याद भी नहीं आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ना ईएफटी करते कैसे हैं और आपको बोलूं रियल में करके दिखाओ, तो आप में से कईयों को प्रॉपर अफर्मेशन याद भी नहीं होगा। एंड आप में से कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि जैसे ही ईएफटी किया सर, इमीडिएट पेन रिलीज हो गया। ऑलराइट, इमीडिएट पेन से रिलीज। आप में से कई लोगों को अभी ट्विन हार्ट कैसे करना है ढंग से समझ नहीं आया है। आप में से कई लोगों को अभी तक ये 6 नीड्स क्या है और इनका रियल एक्सप्लेनेशन क्या है वो अभी तक समझ नहीं आया है। आधी अधूरी समझ डेवलप हुई है, और इस आधी अधूरी समझ के साथ अगर जिंदगी जीना, आई एम टेलिंग यू, डिजास्टर हो सकता है। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जब मैं सीख रहा था, मैंने 12 बार बैच अटेंड किया। एक बैच 12 बार अटेंड किया, एक बार नहीं। और एक बैच में 12 सेशन होते थे, और ये 12 सेशन 1.5 महीने तक चलते थे, और 2 बैच पैरेलली चलते थे। मैं तो सारे बैचेज में जाके बैठ जाता था। जब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की, तो मैंने एक सबकॉन्शियस माइंड का सेशन जो मितेश खत्री जी पूना में लेते थे, उनका ये एक सेशन मैंने कम से कम 500 रुपए उस समय फीस रखते थे। ये शुरू में फ्री दिया था उन्होंने 1-2 सेशन, और उसके बाद मर्जी से, मतलब फ्री नहीं था, लेकिन आप खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपके लिए किया है। आप मर्जी से कंट्रीब्यूट करें तो अच्छा है, नहीं करें तो अच्छा है, तो वैसे ही उन्होंने किया था। एंड उस समय मैंने हर बार 200-400 जो भी मेरे पास होते थे कंट्रीब्यूट करते थे, और फिर उन्होंने उसका एक फिक्स्ड प्राइस कर दिया 500 रुपीज पर पर्सन। एंड 12 से 15 बैचेस मैंने अटेंड किए उसके, और वो 2-2 दिन का होता था। दोस्तों जब इतनी बार अटेंड किया, इतनी बार इसको समझा, उसके बाद इसके ऊपर 10-20-50 बुक्स पढ़ी, और उसके बाद मैंने खुद बुक लिखी इसके ऊपर, तब जाके उस क्लैरिटी से बात कर पा रहा हूँ जिस क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। लेकिन आप में से कईयों को क्या लगेगा, अरे देखो ये अभी सेल कर रहा है, एक काम करते हैं अपन 10 जने मिलके 2400 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और ले लेते हैं। ऑलराइट दोस्त, शॉर्टकट अपनाएगा तो शॉर्टकट में ही जिएगा। एंड डोंट वरी, इससे मेरी ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। खैर दोस्तों, मेरे तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आप में से कई लोग कंफ्यूज भी शायद हो जाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम लूं, कौन सा नहीं लूं। सो मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये वर्कशॉप मेरा मार्केटिंग के लिए नहीं है। न मैं इस वर्कशॉप में आपको कभी भी ये बोलूंगा कि हाँ अभी का अभी नहीं, तो मैं सेल पे आ जाऊं तो आप में से हर एक आदमी अगले 1 घंटे में हो सकता है 2400 नहीं 24,000 रुपए दे दे। इट इज माई पावर ऑफ सेल्स। एंड आप में से कईयों को वो सेल्स की पावर सीखनी चाहिए। सेल्स का कभी प्रोग्राम हो तो अटेंड कीजिएगा। बहुत प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों, बट द प्रॉब्लम इज सबको तो ये करूं या ये करूं। अरे भाई सारे भी कर लिए ना तो भी मैजिक हो जाएगा लाइफ में। बट यू नो डिसीजन मेकिंग में हम लोग इतने कमजोर होते हैं कि 2,000 रुपए के जूते खरीद सकते हैं, लेकिन माइंड में 2,000 कभी नहीं डालते। हम लोग डिसीजन मेकिंग में इतने कमजोर होते हैं कि नीयत छोटी छोटी चीजों पे खराब कर लेते हैं अपनी नीयत। जब जाते हैं वेटर को जाते हैं 200 रुपए का खाना खा लेंगे, 500 का खाना खा लेंगे, लेकिन कई लोग मैंने देखा है 50 रुपए नहीं निकलते उनसे एक वेटर को देने के लिए। कई बार उनका गेट कोई खोल रहा है उसको देने के लिए 10 रुपए नहीं निकलते, या इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं। दोस्तों ये छोटी चीजें हैं, जब डिसीजन लोगे ना 10 रुपए उसको देने का, मैं इतना कह देता हूं उसकी जिंदगी भी बदलेगी और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। और जब आप खुशी से रात को घर जाके सोओगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन अपने आप होगा। दोस्तों ब्रह्म कुमारी की सिस्टर शिवानी कहती है, कमाते तो पैसा सभी लोग हैं, लेकिन पुण्य बहुत कम लोग कमाते हैं। आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेना और ब्लेसिंग्स को बटोरना अपनी जिंदगी में। दोस्तों आज से ब्लेसिंग्स लेने में लग जाओ। ब्लेसिंग के लिए विजडम चाहिए, विजडम अपनी डेवलप करो, सीखो, बहुत सीखो, और ये प्रैक्टिकल चीजें सीखो। इंजीनियरिंग नहीं हुआ ना आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि रिच लोग 99% जो है वो इंजीनियर्स नहीं है ना एमबीए है। ओके, सच बता रहा हूँ, ना वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, ना वो बहुत ज्यादा यू नो, एंड मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय आसमान गड़गड़ा रहा है, बिजलियां कड़क रही है। राइट, सो आसमान क्या पूरा ब्रह्मांड मेरी इस बात को सहमति दे रहा है। सो देखिए फ्लो में जाता जा रहा है, 8:55 कब हो गए पता ही नहीं चला। एंड आप में से हर एक आदमी दिल से कनेक्टेड है, कंटिन्यू कनेक्टेड है। आई लव यू सो मच। सर मुझे कल का मेडिटेशन वीडियो नहीं मिला। हे तृप्ति, वो यूट्यूब पे जब अपलोड हो जाएगा वी विल टेल यू। टीम प्लीज मेक श्योर दैट दैट इज अपलोडेड। ओके
सर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का क्लैश सॉल्यूशन नहीं दिया आपने, ये दोनों क्लैश करते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, इसके ऊपर और जानो और डिटेल में जाओ। इसका सॉल्यूशन है तुरंत डिसीजन मेकिंग। इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही सेशन में दे दिया, इसीलिए कह रहा हूं इसको बार बार देखो। पहले ही सेशन में मैंने बोल दिया था, आप अपने माइंड को बोलो चुप, मुझे अब पागलों की तरह काम करना है, चुप हो जा तू, अब बीच में मत बोल मेरे। ओके इसका सोल्यूशन तो हर सेशन में आपको मिल दिया है, बस फर्क इतना है शायद आपने उसको ढंग से समझा नहीं और शायद आपने उसको सुना नहीं। इसीलिए कह रहा हूं इसको 10-10 बार रिपीट कीजिए, पूरे परिवार के साथ रिपीट कीजिए, अपने बच्चों के साथ रिपीट कीजिए। दोस्तों मेरे टीचर कहते थे रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स मतलब जो चीज आपको 500 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने 5 किताबें भी 500 बार पढ़ ली ना, 5 ही किताबें अगर हर किताब 100 बार पढ़ ली, तो ये जो रेपिटेशन होगा ना, ये आपको इतना हाई लेवल पे ले जाएगा कि पूछिए मत। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स। एंड दूसरी चीज वो कहते थे एक्शन इज द फादर ऑफ ऑल द लर्निंग्स, यानी इम्प्लीमेंटेशन इज द फादर ऑफ ऑल द लर्निंग्स। वो कहते थे रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स। जब आप बार बार रिपीट करते हो तो ही आपकी लर्निंग स्ट्रांग होती है। क्योंकि देखिए जितने भी चैंपियन एथलीट्स हैं, जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, कराटे चैंपियन से लेके कुछ भी, वो एक ही चीज बार बार प्रैक्टिस करते हैं, पंच ब्लॉक पंच ब्लॉक पंच ब्लॉक, और मरते दम तक उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं। ओके जब तक वो रिंग में रहते हैं, विराट कोहली या जितने भी सुपर प्लेयर है वो एक ही शॉट हजारों बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैंने ये स्पीच हजारों बार प्रैक्टिस की है, इसलिए आपको 27 दिन तक मैं बांध के रख सकता हूं, ये मेरी काबिलियत है। लेकिन ये बार बार रिपीटेशन से आई है। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन इज द फादर ऑफ ऑल द लर्निंग्स। मदर फादर टुगेदर बेबी सक्सेस अराइव्स। रिपीटेशन एंड एक्शन, मदर एंड फादर, जब मदर फादर साथ हैं तो बेबी सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू। थैंक यू सो मच। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले सेशन शुरू होता है 9 बजे। आई विल टेक जस्ट 10 मिनट्स ब्रेक। 9 बजे मेरी टीम उसे स्टार्ट कर देगी एंड वी विल मीट यू लाइव एट 9 o'clock डिस्कवर योर विजन में। ऑलराइट अगर आप अटेंड कर सकते हैं जरूर अटेंड कीजिए। एंड इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा, learn.askbsr.com/live पे भी जा सकते हैं या यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आइए सेलिब्रेट करते हैं। लकी विनर्स कल अनाउंस करूंगा एक साथ, कल के, आज के और कल के। थैंक यू। चलिए लेट्स सेलिब्रेट। We go all fast till we can't play. Who knows how I gotta be ready. Thank you so much everybody. Wish you a very happy night. जो लोग आएंगे उनका वेलकम, जो लोग सोना चाहते हैं वो सो जाइए। Take care, love you, see you tomorrow. Thank you. Okay everyone, good night. Thank you. Take care. Bye bye.